Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. कुछ हफ्तों कबल we had a talk titled Parenting Your Consciousness, a Journey of Self-Awareness, where we discussed the transformative power of nurturing and elevating one's consciousness. आज उसी गुफ्तगू का तसलसल उसी की एक कंटिन्यूएशन है और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. ये दोनों डिस्कशंस जो हैं दीज आर लार्जली इंस्पायर्ड बाय द एक्सटेंसिव research work and case studies of Dr. David R. Hawkins, a renowned psychiatrist, physician, researcher, and lecturer, best known for his development of the map of consciousness, जिसका आज भी बार बार हवाला आपके सामने आएगा. अ, यहाँ जितनी भी गुफ्तगू होती हैं, आज की गुफ्तगू और पिछली गुफ्तगू, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जो इल्म जो मालूमात हमारे सामने दुनिया में है उसको हम अंडरस्टैंड करें और उसको क्रिटिकली एनालाइज करें बिफोर रीचिंग टू एनी कंक्लूजन. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर शैला अलवी. आप मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं. शी इज़ अ सीजनड साइकियाट्रिस्ट, psychotherapist and educator with over 2 decades of experience. She adopts a minimalist and holistic approach to address mental health concerns, providing a safe space for clients to explore their inner selves. आप सब लोगों की आमद को शुक्रिया. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. गुफ्तगू के दौरान या गुफ्तगू के बाद जब भी डॉक्टर शैला जो है हाउस ओपन करें फॉर क्वेश्चन एंड आंसर या डिस्कशन, आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा. वी वुड लव टू हैव दिस एन इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग सेशन. बस प्लीज़ ये कीजिएगा कि पहले हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए. बस यही थी एक दो तीन बातें. प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शैला अलवी. थैंक यू. Thank you very much, Nayyar, for your kind introduction. So yes, this discussion is very much inspired by the book Map of Consciousness by David Hawkins, and we'll start. So we already had one lecture around consciousness and how to parent your consciousness, how we can raise our consciousness. And then after the talk, I realized there was it was a very interactive session. People were really curious. Then I just realized I might need to now talk about in depth, or let's say not the depth, but at least more detail of the different levels of consciousness, where we belong and how we can raise it. So the recap of the previous one is, can we start this? The recap of the previous one is that we have different levels of awareness and consciousness of understanding ourselves in reference to the world, and to the world in reference to ourselves. And that is primarily dependent on our vibrational frequency. If we understand that every living being is living being because they vibrate. So every element which vibrates in the universe has a frequency. And according to their frequency, they have a magnetic field. And according to that magnetic field, we can attract or repel elements around us. So elements for living beings, we are talking about here elements as living elements. So human beings, non-human living beings, so all of them we attract according to our frequency. Now this frequency is, I want you, for all the people who are attending it for the first time, please kindly do not confuse yourself with frequency. Has nothing to do with material acquisition. So people can be at the frequency of 20 and can be extremely successful or leaders or financially very stable to completely into poverty. So the frequency doesn't calibrate the financial aspect or material success we are talking about, but it's primarily the spiritual connection we are talking. So जब आप जहन में, if you keep that in your mind, then understanding it will become much easier. Because for me, when I read it, so it took me a while also to understand ke, my mind was constantly used to go at that time ke, oh, then this person or that person I think is very successful, and I thought he's very intelligent or she's very intelligent, but is this frequency above 200 or what it is? Then slowly and gradually I realized that how to understand that. Can we
move forward from this? So this is from your our previous तो मैं दोबारा से recap करना चाहती हूँ. The consciousness is the state of being aware of and responsive to one surrounding. तो हम अपनी सराउंडिंग से कितने अवेयर हैं और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. सो one incident or an element, we all sitting here would respond it differently. Even if two people have same frequency at this point in time, they may still respond it differently, because even in one frequency element we still have blocks and like levels, which is means horizontally and vertically. So let's go. तो लास्ट टाइम ये मैप आई हैड शोन टू पीपल. सो पहले फॉर न्यू कमर्स, आई एम सॉरी फॉर द ओल्ड वन, इट्स अ रिकैप कि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वाइब्रेट एज एनी अदर नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग. हमने नॉन लिविंग थिंग की वाइब्रेशन के बारे में बहुत पढ़ा है, मैग्नेट्स के बारे में, लाइट के बारे में, सो एंड सो फोर्थ. सो ह्यूमन बींग्स चूंकि लिविंग बींग्स हैं तो वो भी वाइब्रेट करते हैं, और चूंकि वो वाइब्रेट करते हैं so they have a frequency. Now since they have a frequency, we just need to quickly see that the frequency impacts their God view, their life view, their level, the scale, emotions and the process. So the lowest frequency is the frequency of shame, which is 20. So human beings below 20 is almost like a death. So people die if the frequency goes below 20. So 20 is very close to being dead. And then the highest frequency is frequency between 700 and 1000, which is called frequency of enlightenment. And very few people, less than 0.1% of the total population at any given time can reach to that frequency. Now, last time the question was raised that how in one lifetime can we go on and cross over all the frequencies? No. And फिर मैंने ये कहा था कि it's another ball game which we're going to talk at some other time about reincarnations and karmas, and how David Hawkins and Gary and many other scientists have integrated that in a way Buddhist concept into modern science. वो एक अलग level है, and we'll do it some other time. So ये एक मैप है जिसके हिसाब से हम चलेंगे. सो मैं आपको बार बार कहूँगी कि इस मैप को रेफ़र करना है हमें. सो यू मे नीड टू रिमेंबर विच स्लाइड नंबर इज़ दिस. सो येस प्लीज़. So the lowest frequency of human consciousness is frequency of 20, and they have called it shame. Now, for how they came to these frequencies is David Hawkins with his colleagues have done experiments on hundreds of thousands of people. What they did, they realized that human beings in certain level of emotions have a different response. Their body, their muscles have a different kind of a response. So people who vibrate on a lower frequency, when adverse events happen in their life, their muscles start to become very weak and weaker. And even in the happier or favorable environment, there is certain level of strength they can achieve or attain, not beyond that. And then they replicate in the same person, and thousands, and as if I say 100,000 of people across the world, to see the reliability, efficacy, and how much it is potent the idea is. And after that, this research came into existence. So they say that people who live in the lowest frequency, that's the frequency of shame, is almost proximate to death. अच्छा, अब जो चीज़ समझने की है कि हम फ्रीक्वेंसी स्टैटिक नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हैं ये स्टैटिक नहीं हो सकती कि बस मैं यहीं हूँ तो यहीं फंस गई. फ्रीक्वेंसीज ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं मूव करती हैं. If suppose at this point in time I have attained something or I created something, and even if I live in the frequency of suppose 30, I can straight away go into frequency of 540 for that period of time. Similarly, people who live in the higher frequencies, they can sometimes, if they get into an environment and their emotional response is not appropriate and they get caught up, they can come to the frequency of 200. And I always and keep giving the example of Hitler. Hitler frequency was more than 400, and when he got into the trigger, he came down to shame and he destroyed the world. So
higher frequency doesn't mean I don't need to be aware of myself. So, game of frequency, game of consciousness is a constant movement, constant awareness, constantly mindful of yourself. So, there is no such thing कि हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ बस हो गया काम. जैसे कि कंप्लेसेंसी आ जाती है और हम हमारे अंदर आ जाती है कि यार अब तो प्रोफेसर हो गए, सब कुछ हो गया, अब बस हो गई, चलो जी बस अब इसको एंजॉय करते. नो, देर इज़ अ वे टू कीप गोइंग फॉरवर्ड. द प्रोफेसर इज जस्ट अ लेबल दैट यू रीच हियर, बट योर वर्क हैजन, द प्रोसेस हैजन स्टॉप्ड. इट्स सिमिलरली यू think it that way. To say the levels, the people who belong to frequency of shame has a conscious passive suicide. So what they means that they get so much disturbed by day to day adversities of their life. So they passive suicide क्या होती है? So passive suicide, I wish I could be dead. इस ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मुझे मर ही जाना चाहिए, जी के क्या करना है. एंड इफ़ all of us sitting here, I would say at least, not all of us, so at least more than 95% of the population right now sitting here, once in lifetime may have thought like that. कि यार अब क्या करें, इससे तो अच्छा मर ही जाए, ये क्या ज़िंदगी है, फॉर टाइम बीइंग, मे बी फॉर अ मंथ, फॉर अ डे, फॉर 2 weeks, फॉर 1 week, फॉर फ्यू डेज, वी ऑल गो थ्रू दैट. And why? Because we keep on moving back and forth. But if I stay in a situation like that where it's my modus operandi, anything happened and I say, oh, it's too much, it's not working, I need to go, खुदा मुझे उठा क्यों नहीं लेता, मौत आई क्यों नहीं जाती. एंड इफ़ यू रिमेंबर और इफ़ यू यूज़ योर मेमोरी लेन, यू मे हैव कम अक्रॉस पीपल लाइक दैट इन योर लाइफ, which it's very tormenting to be around them. And you go and sit with them, want to sit with them, but after 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, you say okay, and you don't know why this is happening, because that frequency, the lower frequency, is very sucking frequency, takes away your energy. इस पे वही लॉ चलता है फिजिक्स का कि अगर आपका लेवल ज़्यादा है और दूसरा लेवल कम है तो खुद ब खुद आपकी एनर्जी सक हो जाएगी, so that's how it happens. So they say, they often, now people who live in frequency of shame, so they're constantly afraid of banishment. So banishment is very important. कुछ हो जाएगा, हम banish हो जाएंगे, punish हो जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, abandon हो जाएंगे, हमको ख़त्म कर दिया जाएगा. That is their prime thing. That is their core motivation. And because of that, they have the capacity to be being very cruel. जो cruelty है is very much of the frequency of shame. If you've seen or come across people who are cruel to animals, cruel to human beings, they have cruel, even if they are not action-wise cruel, but thought-wise they are very cruel. Like we sometimes just become cruel to other kind of people. So there is an otherness all the time we are live with. मेरे लिए so like for India, Pakistan is the other. For Muslims, Christians are the other, or Hindus are the other. For blacks, whites are the other. For whites, so this otherness, this constant thing with otherness also brings in the sense of banishment. And then if I stay in that banishment, then I am more likely to become cruel than any other frequency. So the people who live in the frequency of shame, their behavior can be very, very dangerous. They are dangerous people if they really get triggered by the sense of banishment or abandonment. So one needs to be very cautious about them. How you know about somebody suffering, or you are suffering, or I am suffering from shame, is how I live my life. So usually their compensation on their life is by rigidity and perfectionism. The people around you who are into perfectionism, who are rigid about the laws, कि बस यही होना चाहिए और यही ठीक है, like as they say, serial killers, sexual moralism, ये सब वो लोग हैं. पीपल हु हैव लॉट ऑफ मिसोजिनी, औरतों को ऐसे ही रहना चाहिए, औरतों का और यही मुकाम है, और अगर ये अपने मुकाम से हट जाएं तो उन्हें मार देना चाहिए. ऑल ऑफ दोज थॉट प्रोसेसेस, इफ़ यू कम अक्रॉस पीपल हु हैव दिस constant
prudent thought process, then you might need to think that this person or that community or this gang or this group of people possibly suffering from the frequency of shame. Now, when you come across frequency of shame, please don't try to be friends with them. Don't try to think हम इनको बदल देंगे. You need to accept them who they are. That is the enough of an opportunity for them to change themselves. लोगों को जैसे वो हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेना सबसे बड़ी गिफ्ट है जो हम दे सकते हैं. उनको चेंज करने की कोशिश करना इज़ द बेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट आई कैन गिव टू द अदर पर्सन, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल द टाइम डू. वी कैन डू क्वेश्चन एंड आंसर. यू वांट टू आस्क समथिंग? आप कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा नहीं, अच्छा मुझे लगा. ओके, इट्स ओके. सो ये जो लेवल है कॉन्शियसनेस का जो रेज करने का है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पर्सन. फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन. अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते और आप बदलना चाहते हैं तो आप दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं और उसकी जो शेम है उसको बढ़ा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी सज़ा है जो हम दूसरों को देते हैं. सो ऑल द टाइम पीपल इन रिलेशनशिप, मैरिजेस, हेयर एंड देयर, वर्कमेट्स, यू नो, आप एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये से रख लो, बदल देंगे, इसको समझा देंगे. आई कैन चेंज my lover, I can change my beloved. No, nobody can change anybody. And eventually we all end up in a disaster. But how about I can accept this is it, and can I live with it? That's the question. Can I? And दूसरे को समझना ज़्यादा आसान है. Now the thing is right now as we are sitting here, ask yourself, any of such thing is in me, you know? So वो जो हमारा टेबल है उसको आप रेफर करेंगे प्लीज़? Can you bring that? अब आप ये देखिएगा, इन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर दी हुई है कि जो लोग शेम में रहते हैं उनका जो गॉड व्यू है वो ही डिस्पाइजिंग है. गॉड इज़ नॉट ग्रेशियस और बेनेवलेंट फॉर देम, इट्स डिस्पाइजिंग. यू नो, देयर लाइफ व्यू इज़ मिजरेबल, लाइफ इज़ मिजरेबल फॉर देम. नो मैटर वॉट they are having or material acquisition they have or attainments they have, they still feel life is miserable. And and the level is shame, scale is 20, and emotion is humiliation. They feel humiliated very easily and they humiliate other people. So आपने कुछ कह दिया, वो humiliate feel करने लग जाते हैं. और अगर आपने या वो आपको humiliate करेंगे. So the projection, introjection of the emotional element is humiliation, and the process they go through it, eliminate कर दो. जैसे हमने कहा सेक्शुअल मोरालिज्म, सीरियल किलर्स, क्राइम अगेंस्ट विमेन, मार दो, ख़त्म कर दो. हम ये बहुत आजकल देखते हैं, एंड वी हियर इट दैट पीपल यूजली कम अक्रॉस एंड से कि वो कुछ अर्से पहले आई थिंक लाहौर में हुआ था कि खातून ने मंटो का कोई ड्रेस पहना था, उसमें कोई एरोबिक लिखी थी. उन्होंने कहा भाई इसने जो है वो कुरानी आयतें पहनी हुई है, मार डालो उसको, एंड दे जस्ट डिड इट वॉट एवर दे डिड. सो दैट समथिंग दैट इज़ टिपिकल ऑफ शेम. So those people, such people who can do that kind of cruelty is shame-based cruelty. So they belong to the lowest possible frequency in human life. Okay. Can we move forward from shame to the next? Okay. Shame से जो ऊपर आती है frequency वो है guilt, which is frequency of 30, which is still better than shame. Now I need to also tell you again that frequency game is not linear. आप 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 पे नहीं जाते. It's curvilinear. So in physics nothing is linear. It's energy goes curvilinear. यानी कि आप 20 से next jump 200 पे भी लगा सकते हैं, 40 पे भी लगा सकते हैं, 50 पे भी लगा सकते हैं. It depends upon where you are and what you aspire for yourself. पहली बात ये है कि do you understand which frequency you are in? And that's very important. And whichever frequency you are in, it's okay. It's changeable. So, and then you can aspire, oh, I want to be in that frequency. And today's lecture or a talk is about find out different characteristics of the frequencies and see where you are. You can have a book, download it, read it, find yourself, different paths you can take to understand what your spinal cord reflexes are to the world issues and everyday going on things in your life.
So the people from the guilt of 30, they're commonly found in manipulation and punishment. So these people are the one who talk about punishment. They are very happy to punish other people. They're very happy to be punished. So punishment is very important for them. Isko punish kar do, usko punish kar do, isko punish kar dena chahiye, and they manipulate the world for their needs. So remorse and self recrimination, masochism, gamu of victimhood. इनकी लाइफ में पुअर मी रहता है. पुअर मी, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, लोगों ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, ससुर ने ये कर दिया, बॉस ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, पड़ोसी ने बुरा कर दिया, मुल्क बहुत ख़राब है, उसने तबाह कर दिया. सो व्हाट वी डू कॉन्स्टेंटली इज़ that other people are doing something to me which is not okay. And then since they have a lack of capacity to love, and they constantly want to hide that lack of capacity and show to people that they love, so that is also make them go guilty all the time. तो वो लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो पछतावे से बचने के लिए कर रहे होते हैं. आप कहते हैं यार मैं उसके लिए इसलिए करता हूँ, आई डोंट वांट टू फील गिल्टी. यार मैं अम्मा के लिए इसलिए कर रही हूँ कि आई डोंट वांट टू फील गिल्टी. अब्बा के लिए इसलिए कर रहे हैं, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, XYZ के लिए. नाउ इफ लॉट ऑफ टाइम्स what I do is fueled by guilt, it means also that I do not have right now capacity to love, but I do not want people to know it. I do not want people to know it, and I'm afraid that people will find out, and that thought keeps them into guilt. Got it? It's very little bit circuitous, but it is the way it is. So they say they often induce accident proneness and suicidal behavior. उसमें पैसिव सुसाइड थी शेम में. ये एक्टिवली सुसाइड करने वाले लोग हैं. जो आप देखेंगे कि अक्सर लोग अचानक सुसाइड करते हैं तो उससे पहले जो गुफ्तगू वो करते हैं, जब हम सुसाइड की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करते हैं, इट इज़ मोर अराउंड गिल्ट. मेरे साथ ये हो गया, मैंने दूसरों के साथ ये कर दिया, मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, सब कुछ बुरा हो गया, मैंने सब कुछ बुरा कर दिया, आई शुड बी पनिश्ड, आई मस्ट नॉट लिव. सो दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस और स्पीच और कॉन्वर्सेशन दे वर हैविंग बिफोर दे ट्राई टू किल देमसेल्व्स और अटेम्प्ट और कमिट सुसाइड. एंड एक्सीडेंट प्रोननेस इन लोगों में ज़्यादा होती है क्योंकि अंदर से दे find it very hard to live, but they have more energy than shame, so they are the people who usually are more prone to accidents. Now think about people around you in your life who you think, oh, वो family या वो लोग या वो दोस्त या वो cousin या uncle या aunt, they are very prone to accidents. So most likely, if people who are prone to accident and they are very remorseful and they would like to manipulate through pleasing you, are possibly living in the frequency of guilt, and so can we. We keep coming into guilt every now and then. So preoccupation with sins and unforgiving emotional attitude often used by religious demagogues. So ये religious clerics हैं, इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं. शर्म करो, खुदा गुनाह देगा, फांसी हो जाएगी, कहाँ चले जाएंगे, जहन्नुम में चले जाएंगे, जहन्नुम रसीद हो जाएंगे, आखिरी दर्जे में चले जाएंगे, and that's endless. And lot of organized religions actually use this. The clerics use it for us to be under their control. So guilt is the thing, or guilt is the frequency which they use to control other people. Now remember again, हम ये emotions की बात नहीं कर रहे. इनका label तो emotional है, लेकिन ये emotions नहीं है. ये फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये इमोशन प्राइमरीली निस्बतन ज़्यादा पाया जाता है. So I'm going to keep clarifying it so that you don't get confused by it. Now the subculture shows self-flagellation such as public ritual killing of humans and animals. Guilt provoke rage and killing is from mostly this frequency. Killers, ritual killers, पकड़ के बांध दिया, मार दिया, जला दो, मार दो, गिरा दो. दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिल्ट. अब लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि शेम वाले लोग ज़्यादा डेंजरस हैं बनस्बत इसके. वाई?
Do you have anything in your mind कि why people from who are into frequency of guilt are less dangerous than people into the frequency of shame? They're hopeless. Yes. Any other thought? Guilt वाले भी vulnerable होते हैं. But there is one small little distinction. हाँ, और इनके पास एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये रिचुअल किलर हैं, ये निस्बतन कम हैं लोग दुनिया में. एवरीबडी इज़ नॉट अ रिचुअल किलर, बट शेम में अंदर से मारने वाले ज़्यादा है. शेम वाले लोग अपेरेंटली रिचुअल किलर्स नहीं होते, बट वो डेंजरस होते हैं. व्हेन दे प्लॉट अगेंस्ट, दे डू इट ऑन अ बिगर लेवल. ठीक है ना? और वो एक ही काफ़ी होता है. बट ये वाले जो लोग हैं कितने होते हैं? अब हमने ज़िंदगी में कितने सुने रिचुअल किलर्स? थिंक अबाउट योर सेल्फ. हाउ मेनी रिचुअल किलर स्टोरीज यू हैव हर्ड? हाउ मेनी सीरियल किलर्स वी नो? मतलब हम अगर गिनना शुरू करें तो गिन सकते हैं उनको. अगर हम पिछले 50 साल के रिचुअल किलर्स या ऐसे हम इंसिडेंसेस देखें जिसमें जो है पब्लिक किलिंग या मर्डर हुआ है, हम उसे गिन सकते हैं. लेकिन शेम बेस्ड क्रूल्टी और डेंजर को नहीं गिन सकते, क्योंकि वो आपके अंदर पलता है. एंड देन व्हेन इट कम्स आउट, इट्स रियली डेंजरस. आप रोज़ एक डेंजर के साथ रह रहे होते हैं, बिकॉज एवरी डे ऑन अ स्मॉल लिटिल थिंग्स दे impact the other person in a really dangerous manner. Yes, please. अच्छा, हम दोबारा से ज़रा मैप को रेफ़र करें. अगर आप यहाँ पे देखिए, गिल्ट का जो लेवल है वो 30 है. इनकी जो गॉड्स व्यू है ना, विंडिक्टिव है, और इनका लाइफ व्यू ईवल. एंड देन दे यूज़ इमोशन एज ब्लेम, एंड द प्रोसेस इज डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रॉय कर दो, या अपने आप को कर दो या दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दो. और हर किसी को दे यूज़ ब्लेम. तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, इसने ये जो हमने अभी कुछ अरसे पहले वो श्रीलंकन एक बंदे को मार दिया कि जी उसने जो है वो ब्लास्फेमी की. वो ऑल ऑफ दीज पीपल हु रन इनटू दिस काइंड ऑफ ब्लास्फेमिक एक्ट्स, दे कम अंडर दिस फ्रीक्वेंसी. यस प्लीज. नाउ फ्रॉम शेम टू गिल्ट. नाउ एपैथी इज़ 50. अगर आप एपैथी को असल में जब देखेंगे तो आपको गिल्ट और शेम बेहतर लगेगा. लेकिन एपैथी क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें वो इतने उनको ना मरने का कोई शौक़ नहीं होता. तो इसलिए उनके बराबर के लोग उनसे परेशान तो होते हैं, लेकिन डेंजर में नहीं होते. दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर. अदरवाइज उनके साथ रहना डे टू डे बहुत मुश्किल है. वाई? बिकॉज कैरेक्टराइज बाय पॉवर्टी, डेस्पेयर एंड होपलेसनेस. दीज पीपल लिव इन टू कॉन्स्टेंट होपलेसनेस. कुछ नहीं हो सकता, जॉब नहीं मिल सकती, पैसे नहीं कमा सकती, वज़न कम नहीं कर सकते. अब ये मैं डे टू डे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं. मैं तो जॉब कर ही नहीं सकती, मुझे तो मिल ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी है ही ऐसी, यू नो, इट्स होपलेस फॉर मी, आई कांट डू एनीथिंग. सो दीज पीपल हैव सो मच, एंड दैट इज़ वाई दे लिव इन पॉवर्टी ऑल्सो, बिकॉज होपलेसनेस इज़ अप टू द ब्रिम, and hopeless, they are hopeless about themselves. So they're not right now blaming other people for their hopelessness, which is better for others. Now, world and future looks bleak. Pathos is the theme. It is a state of helplessness. Its victims are needy, lack resources, also the energy to make use of the resources. तो अगर resource उनके पास है भी ना, मैं internal resource की बात कर रही हूँ, external नहीं अभी, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते. I remember in my more than 20 years of clinical experience, I had one client who was completely into apathy. The family brings her in that after she was very, very active, a principal of the school and so on and so forth. And she had an accident and she had a tumor. And after the surgery of the tumor, she just became like a vegetable. She can walk, she can talk, she's fine organically, but she doesn't do any of that. And they said they started bringing her for therapy. And I would sit with her and sit with her and sit with her. And I realized that how difficult. She would suck all my energy but wouldn't give me any single response for months. And she would hear it, listen to it. And imagine her family was living 24/7 like that for many years.
और डॉक्टर्स कहते थे सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शी इज़ चूजिंग नॉट टू टॉक, एंड दैट्स द टाइम आई रियलाइज शी सो मच बिलोंग्स टू एपैथी, which is complete hopelessness. She was not using her resources to come back to life. So, somebody who is not using the resources to come back to life, they cannot be dangerous and cannot be serial killers. So, in that way, they are better. So, they have no will to live without external source of energy. लेकिन external source of energy भी उनको utilize करनी होती. If they go into the deepest pit of apathy, they cannot. Homeless people and unsupported, chronically isolated by progressive disease. So some people who are chronically ill and unsupported, they can go into that. And then lot of homeless people. आप homeless लोगों को कुछ भी दे दें, वो थोड़े दिनों बाद homeless हो जाते हैं फिर से. आप एक beggar को उठा लें, आप उसकी ज़िंदगी में सब कुछ दे दें उसको, वो थोड़े दिनों बाद फिर वहीं आ जाएगा. Why? Because they live in this frequency and they do not know how to make whatever resources being given to them or the resources they have inside of them. So they're a huge burden and society lacks motivation to help these people. इन लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल है. आप मदद करते हैं या तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, एज द एग्जाम्पल आई गेव यू ऑफ वन ऑफ माई पेशेंट, or they keep coming back to where they are. And society doesn't have that kind of resources or motivation because us society in general, the population of the world, since as we have spoken, live below 200 frequency, anyways in a negative frequency, they don't have the capacity to be so benevolent for them and constantly be present for them and bring something to them. So then it becomes like a vicious circle. Yes, can we go back to the map if we have? अच्छा, एक स्लाइड आगे जाइएगा एपैथी के. मैं देखूँ एपैथी को ही मैंने आगे तो नहीं और डिस्कस किया हुआ. नो, प्लीज़ गो बैक टू लाइक अ मैप. मैं बार बार मैप में जाऊंगी सो दैट यू कैन हैव अ. अब एपैथी को देख लीजिए. एपैथी का जो गॉड व्यू है वो कंडेमिंग है एंड लाइफ व्यू इज होपलेस. दे लिव इन द इमोशन ऑफ डेस्पेयर एंड एब्डिकेशन इज द प्रोसेस, यू नो, एंड दैट्स वॉट इज़ वेरी वेरी पेनफुल. सो दिस, ये सब मिलाकर अगर आप देखें, यू मे हैव कम अक्रॉस पीपल हु हैव एपैथी, not even in your life or neighborhood or but on the roads. आप कुछ भी कर लें. कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है, ख़ुद भी मैंने किया है कि हम बेगर्स को या किसी को समझाएं. वो एक हट्टी कट्टी औरत होती है, हम उसे कहते हैं कि भाई मत करो, कहीं काम करो, का काम ही नहीं मिलता, यूं ही नहीं मिलता. एंड दिस इज़ अ लेवल वेयर दे आर लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट होपलेस सिचुएशन and they have resources, they can do but they can't. And this, since this is their frequency, they do not, and they're not aspiring to change. वो कहते हैं ना कि white tiger क्या होता है? Anybody can understand what is white tiger metaphor means? So white tiger metaphor is that in communities and a situation where there is lot of poverty and lack of resources, उनमें कभी कभी एक ऐसा बंदा या बंदी निकलती है जो अपने इनर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिटी से टेंजेंट लेके आगे चले जाते हैं, यू नो, एंड दे आर कॉल्ड वाइट टाइगर्स. एंड देयर आर वेरी फ्यू वाइट टाइगर्स. तो इसलिए वो बहुत कम होते हैं. उसके लिए कॉन्स्टेंट एस्पिरेशन की ज़रूरत होती है जो कि अमूमी तौर पे लैक करती है हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुल्क में, इसलिए बिकॉज हमारी तो एजुकेशन ही का सिस्टम ऑफ है. तो मतलब बेसिक ही हमारी आउट है, तो इस वजह से और ज़्यादा हो जाती है. लेट्स प्लीज़ गो फॉरवर्ड. नाउ from shame to guilt to apathy, grief is now better because now we are into some emotional understanding, some emotions we are ready to feel. Even these emotions are not letting us to be very productive. At least feeling some emotion is better than having no emotion or being dangerous or being cruel. So people who live in grief frequency, they have a level of chronic sadness, loss, despondency, lives a life in constant regret and depression. How many of you have come across people like this? Please raise your hand. Only 3 people? 4? 5? 6? And how many of you have seen people who are close to you, closer to you comparatively, are into this? जिसको हम कहते हैं बेचारों को साइकियाट्रिस्ट के लिए जाना चाहिए, डिप्रेशन हो गया. तो अब अगेन डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो 20 वाले को भी हो सकता है
100 वाले को भी हो सकता है, 200 वाले को भी हो सकता है, लेकिन ये हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जो रहते हैं इस फ्रीक्वेंसी में, वो हमेशा उनको लगता है कुछ सही नहीं है, दुनिया में उदासी है, वो हमेशा आके ना कोई बुरी चीज़, कोई आपका एक नेगेटिव है, आप कितने खुश हैं उनको इनवाइट करा अपने घर में, उन्होंने कहा सबको जो ये छत जो है ना आपकी, इसमें ये निशान कुछ ठीक नहीं है। सो आई हैव रिसेंटली बिल्ड माई होम एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी रस्टिक, तो समटाइम्स सम पीपल आई इन्वाइटेड दे लिव इन दैट फ्रीक्वेंसी, हाँ ये ठीक है लेकिन मच्छर आते होंगे तुम्हारे घर में, तो मच्छरों का आप क्या करते हैं? मैंने कहा है you know what really are you thinking about machhar, you know, of all of that beauty in the house? So because they need to see something which they can assimilate and absorb. So lot of beauty, lot of joy, lot of nature is too much for them. So and chronic mourning, habitual losers, unfortunately that's the word the book has used, मुझे पसंद नहीं लेकिन मैंने उसको as it is quote कर दिया, chronic gamblers who accept failures as a part of their life. So जो gambling करते हैं, constantly gambler, it, and now gambling doesn't mean, I have a lot of my clients extremely rich and gamblers. So it is not about being poor, it's about having that chronic sadness and finding some impulsive relaxation or joy in gambling. And yet, being in the self-fulfilling prophecy that life is a game of sadness, because they will eventually will lose money and eventually will feel sad. And loss of job, family and friends, and opportunity of money and death, you know, so the death eventually is their main focus. They don't usually go into killing themselves, but that has been their focus because they're constantly sad. Major losses in childhood can keep the person in this over generalized sadness. So a lot of people who have experienced incest, which means sexual abuse by the family member or sexual abuse by the other people, can, and which is never being addressed or looked into or by the parents or being corrected, they can live in this frequency all their life. And I have come across many of them in my clinic and otherwise, because I also want to give you that information. More 98% of the males across the world are being sexually abused, and 95% of the girls are sexually abused. The percentage of male is much more than female, because हम सब पूरी दुनिया में अपनी बच्चियों को बचा रहे होते हैं, लड़कों को नहीं। हम बच्चियों को ड्राइवर के साथ नहीं भेजेंगे, चाचे के साथ नहीं भेजेंगे, पड़ोस के लड़के के साथ नहीं भेजेंगे, लेकिन लड़कों को भेज देते हैं थिंकिंग कि उनको कुछ नहीं होता. सो अपेरेंटली हम यहाँ पे जितने मेल्स बैठे हैं, तो एवरी सेकेंड मेल इज बीन सेक्शुअली अब्यूज वंस और मैनी टाइम्स इन द लाइफ. If an apathetic person starts to cry, then they may have shifted to guilt, which is still higher than apathy. तो one good news is कि आप apathy की frequency में हैं, लेकिन somehow the other आप aspire करके ऊपर आ गए. तो apathic लोग जो हैं, जो apathetic हैं, अगर वो रोना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी frequency change कर दी. Now they're expressing, now they're relating, now they want to have some exchange of emotions. So so that's how we're going to look into it. Grief is a symmetry of life better than apathy. अब symmetry grief में देखते तो हम loss हैं, कब्रें हैं, graveyard है, लेकिन it is still better than having no emotion and not being able to use your क्या कहते हैं resources. लेकिन अगर आप note करें कि हमारी society में और across generally societies में other way round है. जो apathetic है, जो होपलेस है, जो हेल्पलेस है, जो वेजिटेबल की तरह ज़िंदगी गुजारा, हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ, और अच्छा हमें वो लोग लगते हैं ज़्यादा बनस्बत उसके जिसमें कोई एजेंसी है, कोई इमोशनल एक्सप्रेशन है. या ये सैड लोग जो है, ये हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमें बार बार ये याद कराते हैं कि देयर इज़ समथिंग, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को भी जाके छेड़ते हैं. सो एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी सैड पार्ट. एंड मे बी आफ्टर टुडेज़ इंटरेक्शन, you may look things differently within you and outside you and have a different understanding of human emotional connections. Yes, please देखिएगा next इसी की continuation है क्या? No, please can we go to the map again? So if you go to the grief, so the God view is very disdainful,
लाइफ यूज ट्रैजिक, लाइफ में ट्रेजेडी ही है, इमोशन रिग्रेट है, एंड प्रोसेस इज डेस्पेडेंसी. सो by virtue of my profession, I get to see these people a lot, or maybe these people knock my door, and lot of successful people we are talking about. I'm not saying because therapist के clinic में, और अगर therapist expensive है तो उससे clinic में poverty ridden लोग नहीं आते, ठीक है. So they are successful, material attainment बहुत है उनके पास, but this is very common. Let's go to fear. अच्छा, फियर जो है, अच्छा इसको खोल दीजिए सारे को. हाँ, यस. फियर जो है इज स्टिल बेटर देन ग्रीफ. हालांकि अदरवाइज हम समझते हैं कि सैडनेस बेहतर है फियर से, लेकिन फियर इज़ बेटर क्योंकि फियर की फ्रीक्वेंसी 100 है. अच्छा, अब वो कहते हैं कि फियर हैज़ मोर एनर्जी, फियर ऑफ डेंजर इज़ एक्चुअली हेल्दी, एंड फियर रन्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओवर आर्चिंग एंडलेस एक्टिविटीज़. बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी जान को बचाना, आगे बढ़ना, खाना कमाना, लोगों से मिलना, जुदा होना, बहुत सारे काम हम फियर की वजह से करते हैं. फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर. ये इमोशन फियर नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी फियर है, ठीक है ना. तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर है वो ये कहते हैं कि बेहतर है फ्रॉम ग्रीफ से ना. इसमें एजेंसी ज़्यादा है. अब आप देखिए, अब मुझे अगर फियर ऑफ डेथ है तो आई माइट डू समथिंग अबाउट इट. आई विल. अब मैं ये कह रही हूँ कि जी मुझे फियर ऑफ पॉवर्टी है, मैं गरीब हो जाऊँगी, तो फियर में वो एनर्जी है, वो पावर है, और मेरे मसल के अंदर वो ज़्यादा पावर है कि मैं कुछ करूँगी उसके लिए. I may end up and doing something. I'll find a job, whatever job. I'll meet people. I'll do something. मुझे याद है कि long time ago, me and my children had gone to Sri Lanka, and we were climbing the Ella peak. It was not the very big peak. Ella Sri Lanka की एक छोटा सा city है, हिल स्टेशन है. तो जब हम वापस आए तो शाम सी होने लग गई थी. एंड तो आजकल के अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब फ़ोन वाले बच्चों को ये समझ नहीं आती ना, ये इनिशियली कि ये क्या हो रहा है. ये तो मैं यूट्यूब पे 5 मिनट में देख लेता, बट वाई डिड यू इवन मेक मी डू दैट. जब वापस आए तो सनसेट होने लगा, एंड वी लॉस्ट द वे. बट वन ऑफ माई, आई हैव 2 बॉयज़, तो माई एल्डर वन, उसकी वो बड़ा फियर से काम चलाता है अपना, तो वो तो घबरा गया. अच्छा, हम तो फिर भी चिल कर रहे थे, ढूंढ लेंगे, कर लेंगे. वो घबरा गया, एंड उसने यहाँ वहाँ पैनिक में घूमना शुरू कर दिया, एंड ही फाउंड द वे आउट देन अस, बिकॉज हम तो चिल कर रहे थे. हम कहा आ जाएगा, अभी ढूंढते हैं, आंखें बंद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, विल फाइंड अ वे, कोई आ जाएगा. बट ही फाउंड द वे फॉर अस. सो द फियर हैड दैट काइंड ऑफ एजेंसी, एंड फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फियर ऑफ डेंजर, आपको डिफरेंस हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी. जैसे मैंने कहा कि शेम की फ्रिक्वेंसी में रहने वाले लोग डेंजर में हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो एजेंसी नहीं है कि हम ये पिक कर सकें कि ये मुझे डेंजर फील हो रहा है with the person, with the situation, with the place, that's a really sad place. और sad people may not find it. उनको डेंजर फील भी हो रहा है तो वो भी वहीं बैठे रहेंगे. एपैथेटिक लोग भी बैठे रहेंगे. गिल्ट वाले कहेंगे यार इसे छोड़ के कैसे जाऊँ, इसे बुरा लगेगा, यू नो. बट फियर वाला कहेगा यार भागो. तो फियर जो है और डेंजर के बारे में स्मेल करना और उसको नॉर्मल ना लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फियर ऑफ ओल्ड एज हमें क्या क्या है? फियर ऑफ डेथ, fear of rejection, societal fears motivate most of the people in this frequency, and world looks hazardous, trap and threat. तो लोग उससे भागने के लिए, आगे जाने के लिए, सबको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोग मुझे ना छोड़ दें, ना पसंद ना कर दें, ये ना टूट जाए, वो ना टूट जाए, जॉब ना चली जाए, पैसे ना ख़त्म हो जाए. We keep on doing that. जी, ओके. नहीं, हाँ देखिए, छोटी जब एक चीज़ जो है अलर्ट होती है कि आपको कभी हुई, और लेकिन आप उसमें ट्रैप नहीं हुए, लेकिन आप इस अलर्टनेस में, इस खदशे में ट्रैप हो जाएंगे और इसी में घूमने लग जाएंगे इसके इर्द गिर्द, तो ये फियर बन जाएगा. रियलिटी ऐसी है ही नहीं
कि आप फियर महसूस करें, लेकिन फियर महसूस कर रहे हैं। नो, जैसे मेरे आपको ऑब्जेक्टिव अब्बू रियलिटी एक से भी शेर फियर कहते होता है। थे, साया शाख गुल अफ़ई नज़र आता है मुझे, उसको शाख गुल भी सांप नज़र आती है। हाँ, तो वो रियल फियर है। वो रियल फियर नहीं है, एक्चुअली ये अनरियल फियर है। हाँ, ये अनरियल फियर है ना, क्योंकि आप गिरेंगी नहीं। ठीक है, अब फियर के दो हिस्से हैं। अब फियर को समझने की चीज़ ये है कि एक होता है खदशा कि शायद मैं गिर जाऊँ, मगर आप ओके हैं। मगर अगर आपको होके नहीं, अब तो मैं गिरी जाऊंगी, और यू स्टार्ट डूइंग समथिंग अराउंड इट, एंड बिकॉज यू आर ट्रैप्ड इन इट नाउ, सो दैट मीन्स दिस इज द फियर यू आर लिविंग नाउ। आपने अगेन इसको इमोशन नहीं देखे, एक फ्रीक्वेंसी देखे। अगर आपकी लाइफ के मोस्ट ऑफ द डिसीजंस एंड एक्शंस एंड स्पीच एंड थॉट प्रोसेसेस फियर के अराउंड है कि यार बूढ़ा होऊंगा, हो जाऊंगा, अकेली रह जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, तो मुझे कुछ करना चाहिए, पैसे जमा करने चाहिए, या जो है लोग जमा करने चाहिए, या फटाफट शादी कर लेनी चाहिए, जो भी सामने मिले, यू नो। सो थिंक अबाउट इट कि हाउ योर डिसीजंस, योर एक्शंस, योर थॉट प्रोसेस आर बीइंग गवर्नड by that. If they are being governed by it, most of it, then obviously you're living in that frequency. Fear हम सबको होता है, और थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। शेम की फ्रीक्वेंसी में, लव की फ्रीक्वेंसी में, एनलाइटनमेंट की फ्रीक्वेंसी से सब में फियर होगा, सैडनेस भी होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप ट्रैप हो गए ना एक ही में, दैट्स द प्रॉब्लम यू आर लुकिंग एट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो है, बिल्कुल है, लेकिन अगर नहीं, आप 24 जिंदगी भर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में नहीं रहते। सो वो देखिए, ये एक अलग सिनेरियो है। आप कभी किसी रिमोट एरिया में गए और कोई आ गया, तो अब आपका फियर जो है वो आपको डेंजर से बचाएगा। आप डेंजर को आपने स्मेल किया, डू समथिंग। लेकिन मैं 24 घंटे घर से ही ना निकलूँ ये सोच के कि यार लोग अच्छे नहीं हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ जाना नहीं चाहिए, रात हो गई तो वापस कैसे आऊँगा, दिन हो गया तो क्या होगा, यू नो, उसने ये मुझे देख लिया तो क्या होगा। इफ़ मोस्ट ऑफ माई एक्शंस एंड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन that frequency, that's what we are saying, a frequency of fear. So it inhibits growth of the personality, and it is very hard for the people to rise above it unaided. जो frequency of fear में रहते हैं वो खुद से नहीं निकल सकते, उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है। अब अगेन हमने बात की थी साइकोथेरेपीज वन, स्पिरिचुअल पाथ्स, या कहते हैं जो आप डिफरेंट पाथ से आप रीडिंग करते हैं, आप किसी मेंटोर के साथ चले जाते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल टीचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हु एवर वेर एवर दे आर इन विच एवर पाथ। बट अनएडेड निकलना क्यों मुश्किल है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज गवर्न बाय इट। अब खवातीन को कितनी है, खवातीन बैठी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बताइए कि हमें कितना फियर दिया जाता है? रात को अकेले ड्राइव करोगी, व्हाट द हेल आर यू गोइंग टू डू? कोई कुछ हो जाएगा, तुम्हें नहीं ड्राइव करना चाहिए। अरे आप मेरे घर आए, आपने कहा रोड बड़ी ख़राब है, मैं तो दोबारा नहीं आऊँगी। इट वॉज फियर कि कुछ हो जाएगा मेरी गाड़ी को, मुझे कुछ हो जाएगा, यू नो। अच्छा, हम इसको, हाँ, सो द थिंग इज़ दिस द थिंग इज़ दिस कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, जब हम, अब मैं आपसे ये, अब हम खवातीन को कितना फियर में रखते हैं और कहते कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक सर्टन लेवल के बाद बच्चों को ज़रूरत होती है। द रियल एजेंसी इज़ व्हाट? मेकिंग देम एम्पावर्ड। जब मर्द भी एम्पावर्ड हो जाएंगे और औरतें भी एम्पावर्ड हो जाएंगी, तो ये मसले नहीं रहेंगे। फिर ये मसला नहीं होगा कि रात को कौन लेट आ रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर ईच अदर। लेकिन अगर हम अपने घर में अपने बेटे को कहते हैं बेटा तुम तो आ जाओ रात, तो कोई बात नहीं, लेकिन बहन नहीं आ सकती है, इट्स नॉट ओके फॉर हर। नाउ यू आर टेलिंग योर सन दैट यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, यू आर अलाउड and you have more power than she. Why she is not power? She is more emotionally connected. She can sense danger better than men. She's more, उसका हिप्पोकैम्पस ज़्यादा काम करता है, उसका डेंजर ज़्यादा काम करता है। एक सिर्फ मसल ही नहीं करते ना, बाकी चीज़ें तो उसकी बेहतर काम, लेकिन मसल भी बनाए अगर उसके, तो वो भी काम करेंगे। हम सब बच्चियों को कराटे सिखा दें, they are going to feel empowered enough, you know. So the thing is, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको।
हाँ, इसलिए कि आयशा जो थी वो उसने गलत टाइम पे निकली थी. आपको ये भी समझना होगा कि आयशा की मेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमिंग्स वाज नॉट करेक्ट और आयशा को इक्विप्ड नहीं थी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेंजर. देखें, डेंजर, अभी मैंने कहा कि आपको फ़र्क महसूस करना होगा डेंजर में और फियर में. बिल्कुल नहीं समझ सकती. तो डेंजर को समझाना इंपॉर्टेंट है. डेंजर को समझाना इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब मैं एडिक्टिव बिहेवियर में मास्टर्स करी थी तो तो एक हमारे टीचर कहते थे कि ख़वातीन जब वीकेंड के ऊपर बार्स में जाती हैं लड़कियां, तो हमारी उनको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती है कि गैंग में जाएं, अकेले ना जाएं, और उसमें कम से कम 2 सोबर लोग होने चाहिए, कोई एक मेल भी साथ रख लें, बिकॉज या फीमेल ही हो तो सोबर हो, बिकॉज इफ़ यू गेट ड्रंक एंड देन देयर हुकर्स स्टैंडिंग आउटसाइड जो आपको गिरते गिरते पकड़ेंगे एंड सुबह यू विल बी रेप्ड एंड दे से ओ वी वर ऑल ड्रंक, you know. So उन्होंने कहा this is very common. Now since you are drunk you cannot sense the danger, rather you will go towards the danger because you're disinhibited and you cannot take care of yourself now. So the thing is this कि danger को पकड़ना ज़रूरी है. आप पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेंस ऑफ डेंजर को समझना ज़रूरी है. अब अगर ख़वातीन अकेली जा रही, लड़की जा रही है, ड्रंक हो रही है, कोई उसके साथ सोबर नहीं है, या लड़का भी अकेला जा रहा है और ड्रंक हो गया, लेट नाइट निकल रहा है, सोबर नहीं है, कुछ नहीं है, इलाका ठीक नहीं है, अगर वो मग्ड हो जाता है तो ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज दे आर अनएबल टू सी द साइंस ऑफ डेंजर. एंड दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग बी ओवर कॉशियस, बट जस्ट द राइट thing. Yes, please. Okay, can we go to the map again? अगर आप देखिए fear again, the God views punitive. ये जो मेरे साथ हुआ ये तो होना ही था, you know. और God punishes everybody, is not kind. And life is tragic. Tragedies तो होती हैं. देखिए मेरी ज़िंदगी कितनी tragic है. And regret, they regret their life. And they have again am I right? No, sorry, anxiety is their emotion and withdrawal, and then they withdraw from the world. If they live in this frequency, they're usually withdrawn people. They usually do not take head on collision to the world, to the challenges, to the conflicts, to the confrontations. Let's go forward. Yes, desire. So now desire, हालांकि आम अगेन मैं कहूँगी कि हम कहेंगे फियर बेहतर है डिज़ायर से. डिज़ायर के साथ तो एक लाल बत्तियाँ चलने लग जाती हैं, टक 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 टक. डिज़ायर, व्हाट डज दैट मीन? औरत को तो डिज़ायर होनी ही नहीं चाहिए, मर्द के लिए है डिज़ायर. मगर मर्द भी ज़्यादा डिज़ायरस हो तो प्रॉब्लम. ये एक रेड बत्ती है. हम चाहते हैं कि हम ऐसे रहें, हमारी डिज़ायर भी बाहर ना आए, हम भी ना हो. इट्स जस्ट फियर हो, शेम हो, गिल्ट हो. इट इज़ बेटर देन डिज़ायर. I have a desire, you know. Now, just pay attention कि हम कितनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में भी, बिकॉज वी सो अनअवेयर, हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज में रहना पसंद करते हैं एज अपोज टू बेटर फ्रीक्वेंसीज. नाउ व्हाट दिस इज, डिज़ायर मोटिवेट्स मेजर एरिया ऑफ लाइफ, स्पेशली इकोनॉमी. मुझे डिज़ायर होगी तो मैं कुछ करूँगी. मुझे डिज़ायर है कि मैं वेकेशन पे जाऊँ कहीं, वटेवर, यूरोप जाऊँ, एशिया जाऊँ, कहीं जाऊँ, तो वो डिज़ायर मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं रिसोर्सेज ढूंढूँ, रिसोर्सेज पैदा करूँ, प्लान करूँ, मोटिवेट करूँ. लेकिन अगर मैं फियर की फ्रीक्वेंसी बनाऊँगी तो क्या होगा? एनीबडी कैन थिंक अबाउट इट? इफ़ आई लिव इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर एंड आई वांट टू गो फॉर वेकेशन, व्हाट पॉसिबली कैन हैपन? कुछ बुरा हो जाएगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा, रास्ते ख़राब हो जाएंगे, फंस जाओगी, यू नो, अनजाने मुल्क के अंदर कुछ हो जाएगा. दैट्स नॉट राइट, यू नो. भाई इस्लामाबाद में तो मुझे लगता है कि फियर इतना ज़्यादा है कि वो F10 से F8 जाते हुए भी डरते हैं. अरे ये इतनी दूर कैसे जाएंगे, ये सेफ़ नहीं है, यू नो. सो लुक एट इट. हालांकि आई थिंक सेफेस्ट सिटी है, छोटी सी है ना, रोड्स भी सारी ठीक है. मेरे घर आते हुए तो मेरे अक्सर दोस्त डर रहे होते, अरे इंशाल्लाह दिता कौन आएगा, बहुत मुश्किल है, बड़ी दूर है, यू नो. बिकॉज कुछ हो जाएगा.
समथिंग इज़ नॉट राइट, रोड अच्छी नहीं है, साफ़ नहीं है, वो फीलिंग नहीं आती है, गाँव से गुजरना पड़ता है. इसी तरह हम बनीगाला के लिए भी करते हैं, बाराकोह के लिए भी करते हैं, जो हमारे दूर परे के एरियाज़ हैं, हम वहाँ जाते हुए घबराते हैं एज अपोज टू अदर एरियाज़ एंड एज अपोज टू अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी जहाँ पे ऐसा नहीं होता. तो डिज़ायर possibly is very important in this at this time कि, oh, I really want to go, you know, that can only overcompensate the fear and motivates major advertisers use desire नहीं please, advertisers use desire to program the world in their needs linked to instinctual instincts. एडवर्टिजमेंट सारे हमारे डिज़ायर से, हमारे इंस्टिंक्ट से जो है वो खेलते हैं. तो अगर खेलना शुरू कर दें तो अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे अच्छा है. इट enables to us to achieve goal. Desire for worldly attainment is being used by many who have risen from the fear frequency. दुनियावी चीज़ों को भी हासिल करने के लिए, मटीरियल अटेनमेंट्स के लिए भी फियर से ऊपर आना होगा और डिज़ायर लेनी होगी. अच्छा, ये बड़ा कॉमन है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि मैंने देखा है एक मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल एंड लोअर क्लास के, हाँ, क्लास में एक सर्टन काइंड ऑफ फियर है मनी के साथ, एक सर्टन काइंड ऑफ फियर है सक्सेस के साथ, और एक एरोगेंस अटैच कर दी है हमने सक्सेस के साथ. ये सक्सेसफुल लोग, अमीर लोग एरोगेंट होते हैं, ये बुरे होते हैं, यू नो. ये पैसा जो होता है वो अच्छी चीज़ नहीं होता, नहीं कमाना चाहिए. अच्छे लोग पैसा नहीं कमाते, यू नो, and that's not right. Now that's fear, shame and guilt, mixture of all the lower frequencies, because I cannot do it to make it bad. अब वो इसलिए जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है, और जो लोग इस ट्रॉमा से निकल जाते हैं, देन ओनली इट बिकम्स ईजियर फॉर देम. इट डजंट मीन दैट देयर कॉन्शियसनेस लेवल डज नॉट इंक्रीज और ग्रो, but at the same time their material also goes, but they are not obsessed with earning money or attainments or all of that. It just grows with them. It's also a frequency of addiction, insatiable need. तो लोग डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी में अक्सर एडिक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज अगर वो फ्रीक्वेंसी में अदर एंड पे चले गए तो कभी भी सैचुएट नहीं होते. सो दे कीप ऑन गोइंग, डूइंग द सेम थिंग, यूजिंग द सेम ड्रग, सेम बिहेवियर, सेम काइंड ऑफ स्टफ अगेन एंड अगेन टू फील द सेम हाई. क्रेविंग इज लार्जर देन लाइफ फॉर देम. Desire of attention, sexual approval, etc. Now, women's desire for sexual approval has brought all the cosmetics and the clothes and stuff like that. For men, this is, you know, the performance-based advertisements and stuff like that is for them. It has a need to accumulate and greed for more and more. अगर आप एडिक्ट नहीं भी हैं, लेकिन डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी में तो और चाहिए. एक घर काफ़ी नहीं है, 2 होने चाहिए. 2 घर काफ़ी नहीं है, 4 होने चाहिए. गाड़ी एक नहीं 5 होनी चाहिए. 5 नहीं, अब तो एरोप्लेन भी ले लेते हैं, हो सके तो ट्रेन भी खरीद लेते हैं, यू नो. अब इस मुल्क में नहीं, उस मुल्क में भी घर होना चाहिए. इट डजंट एंड. लुक एट द ग्रीड एंड डिज़ायर ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स एंड मैनी अदर पीपल. भाई, एक घर में एक कमरे में रहना है, एक रोटी खानी है आपने, एंड ऑफ द डे वो भी नहीं खानी क्योंकि डायबिटीज़ हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, मगर टेबल भरी होनी चाहिए. कोई 25 खाने पके होने चाहिए, वो डस्टबिन में जाए भले, यू नो, एवरी डे. इट डजंट मैटर. यार, एक नहीं, अब 2 घर और बना लेते हैं. अब नथिया गली में भी बना लेते हैं, और हुंजा में भी बना लेते हैं, और एक कराची में भी होना चाहिए, और एक बीच हट भी होना चाहिए. वाई? बिकॉज वी आर स्टक विद दिस फ्रीक्वेंसी. इट इज़ गुड, बट वी आर स्टक विद इट. देन दिस इज़ वॉट द रिजल्ट्स आर. अब जब मैं डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी में फंस जाऊंगी, तो जब मैं एक से ज़्यादा चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? I'll keep going back to the frequency of shame and guilt and start hurting other people and manipulating them. What big organizations, CEOs of most of the companies are doing, they are manipulating people to get their needs met. Satisfaction of one नहीं, ये मैं नहीं बोलती, मैं पकड़ी गई तो कुछ हो जाएगा. Satisfaction of one desire has been replaced by the other. I had this urge, but I am not going to say it. So satisfaction of one desire has been replaced by the other. When we are stuck in it, एक चीज़ खरीद हो गई, अब दूसरी ले लेते हैं, अब दूसरी हो गई, तीसरी ले लेते हैं, तीसरी हो गई, चौथी कर लेते हैं. It just become endless, and it is the springboard to higher levels of energy. Yet आप desire में करके higher frequency में जाते हैं. Okay. Let's forward.
एंगर. सो अब एंगर हालांकि कितना ज़्यादा वो है बेचारा, क्या कहते हैं, बुरा भला कहा जाता है उसको. गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने वाले लोग बुरे हैं, इसको गुस्सा बहुत आता है, इसके ये मसाइल है. बट एंगर इज़ बेटर देन डिज़ायर एंड फियर एंड शेम एंड गिल्ट बिकॉज इट हैज़ एन एजेंसी इन इट. Anger, here we are not talking about emotion, we are talking about a frequency which has agency in it. How anger leads to homicide and war. आप अपने आप को नहीं मार रहे होते, एजेंसी है, आप जाके दूसरे को मार रहे होते हैं. वॉर्स भी एंग्री लोगों ने जनरेट किए हैं, और एंग्री लोग ही जो उस फौजों के साथ और आर्म फोर्सेस के साथ जाके मिलते हैं जो इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं. इट कैन लीड टू आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्शन. People move out of apathy to grief and overcome fear, and then comes anger, which enables people to fulfill their desire. So people who cannot fulfill their desire, they do feel frustrated, and when they feel frustrated, they can actually come into the frequency of anger and can fulfill their needs. So anger is a very protective emotion also. I say it's a high frequency, high strung emotion. लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैंने गुस्सा किया तो अम्मा को बुरा लगा, अब्बा को. सो आई ऑलवेज से कि एंगर इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव इमोशन, बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज इट as an emotion. Even the frequency, it is very important, but we do not know how to be in this frequency and move forward than backwards, because इसमें इतनी एजेंसी होती है कि I can be hurtful for other people also, but how can I not be hurtful, use the anger for my constructive and the world's constructive pathways. It is expressed as resentment and revenge as an outcome of frustration. It can be volatile and dangerous. People are often irritable, oversensitive to slights, explosive, injustice collectors, quarrelsome and belligerent or litigious. तो ये वो लोग हैं जो आपने कोई देखा है क्या, हर वक्त मुकदमे चलाते रहते हैं, किसी न किसी के ख़िलाफ़ उनको मुकदमा है. आप बैठें तो सिर्फ वो यही बुराई कर रहे होते हैं कि इस हुकूमत ने ये कर दिया, उस हुकूमत ने वो कर दिया. एंड ऑल द टॉक दे हैव, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ men when sit together, they only talk about that. So there's a lot of anger they keep projecting on the governments and the people and the situation. And if we stuck, so हम हर frequency again can go into other frequencies, लेकिन आप stuck हो जाएं तो क्या होगा? Think about it. If you're angry all the time, if you then eventually, and if you're not aware, then we become destructive to people and places and to ourselves. Yes, इसमें agency है. Agency means you have still strength to go forward and protect yourself and others. It is not dangerous. It can only be dangerous if it is combined with shame. Yes. Then it could be dangerous. Yes. देखो, इमोशन जो है एक फीलिंग है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेशन है आपकी. आप फीलिंग में नहीं वाइब्रेट करते, आप पूरे वाइब्रेट करते हैं. तो उस वाइब्रेशन में कभी आप एंग्री भी हो सकते हैं एज एन इमोशन, कभी सैड भी हो सकते हैं, कभी खुश भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे एक्शंस हैं, हमारी थॉट्स है, हमारी स्पीच है, वो एक सर्टन एलिमेंट से ही ड्राइव होती रहेगी. एंड दैट्स द डिफरेंस. सो पीपल इन एवरी फ्रीक्वेंसी डू फील डिफरेंट इमोशंस. ओके, try to understand, but they do not, but their actions and their projections and their speech and their thoughts but usually come from this frequency which is either has despondent or destructive and so on and so forth. हाँ, आप एंगर की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, लेकिन आप लव भी फील करते हैं कि एंग्री लोगों को मोहब्बत नहीं होती, खुशी नहीं होती, फन नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, सब होती है. ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड. So pride is again better than anger. Lot of people feel proud and have pride in their success, so the energy can run any organization. People run their organization because of the frequency of pride. This level is being aspired by majority. हम सब कहते हैं ना, you must be feeling very proud that आपके बेटे को scholarship मिल गई. You must be feeling very proud कि आपका इतना अच्छा exhibition हो गया. You must be feeling very proud आपने घर बना लिया. And we talk about proud is something is we use all the time,
एंड इट वर्क्स एज अ बाम टू लो सेल्फ एस्टीम. लेकिन जिनकी सेल्फ एस्टीम हमारी जब लो होती है तो प्राइड को हम एज अ बाम यूज़ करते हैं. इट डजंट एलिवेट अस, it only does not let us feel the pain of low self esteem. Pride generally has a good reputation, socially encouraged, yet it is still comes under negative frequency. It is defensive and vulnerable, dependent on external conditions. Without outer validation, it falls into the lower levels of shame. Mostly, it has inflated ego. क्या डिफरेंस है? प्राइड में बाहर से मुझे चीज़ें चाहिए. मैंने बहुत पैसे अटेन कर लिए, मैंने अच्छे नंबर ले लिए, मुझे जो है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन हाई हो गई, मेरी जो है क्या कहते हैं मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई. यू थिंक अबाउट इट्स ऑलमोस्ट रन बाय एक्सटर्नल वैलिडेशन. चीज़ें मुझे बाहर से मिलती हैं तो मैं वैलिडेटेड फील करती हूँ, उनसे प्राउड होती हूँ. कभी आपने देखा है यू शुड बी, आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल. वी नेवर यूज दैट वर्ड phrase, never, because when we are spiritual we are not proud, we are anyways humble, and we know it's a process and we are okay and happy about it. So pride is fueled by external validation, and that is why it comes into negative frequency. So people who are attending it for the first time, just I need to tell, 85% of the total population of the world lives in negative frequency which is below 200. That is why world is kindly comparatively a sad place. Yes, please. So pride is divisive, give rise to factionalism, divide करती है लोगों को. I am proud of you, I am not proud of you. Okay? Religious wars, terrorism, zealotry, it is costly and it comes in the frequency of pride. ये जो सारा कुछ हम करते हैं, मैं बड़ा मुसलमान हूँ, आप कम छोटे मुसलमान हैं, इस्लाम बड़ा है बाकी रिलीजन छोटे हैं, क्रिश्चियनिटी बड़ी है जुडाइज़म छोटा है, जितनी इस तरह की जो वर्ड्स है जिसमें हम ये कहते हैं आई एम बेटर देन यू, इट कम्स फ्रॉम प्राइड. प्राइड इज एरोगेंट एंड लिव्स इन डिनायल. सो इट डजंट एक्सेप्ट द होल पिक्चर. हाफ ऑफ द पिक्चर इज डिनाइड. The issues in me are denied, the issues in the world are denied. It has to be pride. It is a growth block for many. और बहुत से लोग प्राइड में आके फंस जाते हैं and they never come out of it. Yes. Denial doesn't let people to see the reality and work towards higher frequency. So जब मैं deny करती हूँ, oh I am so proud of myself, then at the same time I'm denying the possibility of me being more spiritual and raising to a frequency which is more at peace. Now we are going to enter into the frequencies of peace and love. Let's go forward. Now courage is a game changer. Courage is a frequency which is a neutral frequency. After 200, anything above 200 is positive frequency. Less than 5% of the population go there overall. Okay? So this is also very important to understand. It's a work of art to go there. And as I told you before, in one lifetime people can change 3 frequencies. आप 3 जंप लगा सकते हैं, 3 से ज़्यादा जंप नहीं लगा सकते. That's what Hawkins has come across in their statistics. It's a game changer. Power really first appears here. You feel really empowered without manipulating, without being afraid, without feeling shame or full of desire or pride. You just feel empowered. It distinguishes the positive and negative influences. It's a zone of true attainments, accomplishments, fortitude, and determination. Life appears exciting, challenging, stimulating. Anxiety does not cripple anymore. ऐसा नहीं है कि anxiety होती नहीं है, cripple नहीं करती. ऐसा नहीं है कि desire होती नहीं है, लेकिन हम एडिक्ट नहीं होते. ऐसा नहीं है कि एंगर नहीं होता, लेकिन हम डिस्ट्रक्टिव नहीं होते. एंड दैट इज समथिंग. एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज ओके. दे टेक अप द लाइफ चैलेंजेस, दे गो ऑन विद इट, एंड दे डोंट गिव अप so easily. Life becomes easier for them. It's hopeful for them. Yes, please. And it enables to try new things. Education is attainable goal. Capacity to face fears, character defects, and grow despite of them. So you understand कि इसमें जो लोग एजुकेशन को हर हालत में हासिल करना चाहते हैं, उनको कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, they are into this frequency. उनके लिए हर हालत में इल्म हासिल करना, तालीम की बात नहीं हो रही, इल्म हासिल करना अटेनेबल है.
वो हर अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को पिक कर सकते हैं और उसको हील करने के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं. And they grow despite all of these things. People give back the energy as much they have consumed. ये वो लोग हैं, आपसे मैंने जितनी एनर्जी ली मैं आपको वापस भी करूँगी. I have this internal feeling. And at lower levels, people drain energy from the society without reciprocating. Lower levels than this, लेते हैं, देते नहीं हैं वापस. यहाँ देंगे भी, लेंगे तो देंगे भी वापस आपको. It is here when productivity begins. Success results in positive feedback, reward, and esteem, which is again self reinforcing. For centuries, the world remained at 190 hertz, and only in 80s, sorry, the spelling mistake, jumped over to 200. अब हम 80s में जंप किए हैं पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इनटू 200s. उससे पहले हम मुकम्मल वहाँ रहते थे, अब 200 में हम जंप करना हमने शुरू किया है. लेट्स गो फॉरवर्ड. Neutrality, which is 250. Energy becomes very positive, no conflict, no competition और sense of defeat. ना किसी से कोई झगड़ा होता है, ना competition होता है, ना comparison होता है, ना कोई आप हार कोई हार नहीं होती. अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हाँ अगर नहीं हुआ तो दोबारा कर लेंगे, ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश की नहीं हुआ, ये उनके लिए कोई इशू नहीं रहता. It has no sense of polarization. मैं सही आप गलत, आप वो गोरा ये काला ये मुसलमान वो गैर मुसलमान, ये सब मसाइल इनके हल होने लग जाते हैं. People are unattached to outcome. Not getting their way is no more defeating, frightening or challenging. अगर वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं तो आपके लिए ये फेलियर नहीं है. You just accept it and you go forward because you know you will eventually get it what you need. They have an innate sense of well-being, can live in the world easily. It is a non-judgmental position. It doesn't modulate their people behavior. They value freedom. हर किसी की शख्सी आज़ादी, कम्युनिटी की आज़ादी, सोच की आज़ादी, दिमाग की आज़ादी, जिस्म की आज़ादी, इमोशंस की आज़ादी, ये लोग आज़ादी पे बिलीव करते हैं और आज़ादी देते हैं और आज़ादी आसानी से अपने लिए रख भी लेते हैं. They don't go into fights. From above this is willingness. It is the gateway to the higher levels. Desire is different from it. Now you will see the difference. Desire comes still under the negative frequency. Now it is willingness. So you see the difference. Jobs are done adequately at this level. Growth is rapid and are chosen for advancement. People overcome inner resistance to life, have commitment to participation. People are genuinely friendly. Social and economic success follows automatically. क्या चीज़ डिफरेंट है आपके ख्याल में डिज़ायर से? अगर आपको कुछ डिज़ायर की एक आध कोई चीज़ याद हो तो. Yes, that's not here. डिज़ायर में लोग एडिक्ट हो जाते हैं, विलिंगनेस में ग्रीडी होते हैं. ये ग्रीडी नहीं है, एडिक्ट नहीं है, सैचुएबल हैं. दे सैचुएट, उनकी भूख मर जाती है, ख़त्म होती है, भर जाती है. डिज़ायर में भूख ख़त्म नहीं होती. See, and that's something very important to understand. And that's a very beautiful place to be in. And we all can go back in. आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये विलिंगनेस वाली फ्रीक्वेंसी फील की होगी, चाहे वो मोमेंटेरली हो, आप वेकेशन पे गए में हो, नेचर में बैठे हो, अमेजिंग स्पेस हो, ऐसी कम्युनिटी में हो, किसी ऐसी हायर फ्रीक्वेंसी के इंसान की कंपनी में हो, यू वुड हैव फेल्ट दिस. ट्रांजिएंट ही होगा लेकिन आपने फील किया होगा. लेट्स गो फॉरवर्ड. विलिंगनेस में आप रिस्पॉन्सिव होते हैं और आप जो है वो नेगेटिव नहीं होती, फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो हायर हो जाती है. आप करेजस तो होते ही होते हैं ना. जब आप करेजस होते हैं तो आप एडिक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज देन यू आर फेसिंग एवरीथिंग अप फ्रंट. इट इज़ रिस्पॉन्सिव, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अदर पीपल नीड. They are self-correctors as they bounce back from all the adversities of life. No pride supports them to look into the defects and learn from others. People at this level are excellent students, easily teachable, and represent the source of power. So, I'm sure sitting here, maybe good enough students or excellent students some point in your time, or teachers, and you remember if you're teachers, the students were easily teachable, वो इस frequency में होते हैं. और इवन वो ट्रांजिएंटली हो लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं वो उस वक्त.
इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी एक्सेप्टेंस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो जाती है। एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने आपको कहा ना कि किसी को चेंज नहीं करना, बस एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे हैं, मैं ऐसी हूँ, आप ऐसे हैं। पहले अपने आप को कर लें, बस ऐसी ही हूँ यार, मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, कम हूँ, ज़्यादा हूँ, बस ऐसी ही हूँ मैं। ये मेरी सोच है, ये मेरे ख्याल हैं, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे ड्रेसिंग है, ये मेरा घर है, ये मेरे चॉइसेस हैं, गलत हैं, सही हैं, अदर देन द सोसाइटी है, बस मैं ऐसा ही हूँ और ऐसी ही हूँ। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट ईजिली अटेनेबल। अगर ईजिली होता तो फिर ज़िंदगी अब तक जन्नत होती हम सबकी। वन अंडरस्टैंड दैट दे आर द सोर्स एंड द क्रिएटर ऑफ द लाइफ। अब इस फ्रीक्वेंसी में क्या है कि मैं ही रिसोर्स हूँ और मैं ही अपनी ज़िंदगी क्रिएट कर रही हूँ। सो देयर इज़ नो अदर बीइंग डूइंग थिंग्स फॉर मी। आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल टोटली ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टू माई लाइफ. It is a distinctive responsibility. It enables one to live harmoniously with the forces of life. Below 200, people tend to be powerless and live in victimhood. You are the source, you are the creator, and you are the beloved, and you are the lover. There is nobody outside you. मैं ही महबूब हूँ, मैं ही आशिक हूँ, मैं ही खुदा हूँ और मैं ही मस्जूद हूँ. जैसे जिसको वो इकबाल ने कहा है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. लेट्स गो. सो डिनाइल इज ट्रांसेंडेड, नो डिस्टॉर्शंस ऑफ परसेप्शन. डिनाइल नहीं होता इन लोगों को, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हर चीज़ को. डिनाई क्या करना है अब? वन कैन सी द होल पिक्चर, अपनी भी और दूसरे की भी. एक्सेप्टेंस हैज़ टू डू विद बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड अप्रोप्रिएटनेस. Tough jobs do not cause discomfort. Long term goals take precedence. Short term goals नहीं होते, long term goals हैं. अगर मैं सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहती हूँ या कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हूँ, कि नहीं कि आज मैंने की सर्विस कल ही उसका रिजल्ट आ जाए. मे बी मेरे मरने के बाद आए. मैंने एक दरख्त लगा दिया, 100 दरख्त लगा दिए, अब वो तो मेरे शायद ज़िंदगी में ना आए, मैं उनका छाँव नहीं देख सकूँ, बट आई हैव दिस थिंग, जो भी होगा. But let people benefit out of it. And then non-human living beings as well. Self-discipline and mastery takes precedence. There is no rigidity as seen in lower levels. It is free of discrimination, intolerance. One is aware that equality does follow diversity. Acceptance includes, then rejects. It's inclusive. Everybody is welcome. It doesn't exclude, it doesn't divide. So that's how it is. You can differentiate pride from it by taking this understanding. Let's go forward. We're just coming to an end. This is 400. This is the level of Nobel Prize winners and great statesmen. ये वो है जो लोग rationalize करते हैं और unknown को इमेजिन करते हैं, उसको जो है फैक्चुलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट के रीजनिंग देखते हैं. सो दे आर द यूजली दोज रिसर्चर्स एंड द ग्रेट स्टेट्समैन. बट द ओनली डिफरेंस हियर इज दे कैन नॉट, इवन देयर रीजनिंग कैन नॉट enable them to differentiate between object and subject. उनको फिर भी कहाँ फंसते हैं वो कि ये सब कर कैसा हो रहा है, हो कहाँ से रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ रीजंस देखते हैं और इमोशनल एलिमेंट जो एक है ना, जो एक अननोन एलिमेंट है, उसको वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते. इसलिए बहुत से यहाँ पे स्टक हो जाते हैं और आगे स्पिरिचुअल लेवल पे वो नहीं, या कॉन्शियसनेस के लेवल पे नहीं जाते. सो लेट्स गो फॉरवर्ड. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग लिटिल क्विक. सो लव इज़ द फ्रीक्वेंसी विच इज़ 500 ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये वो इश्क नहीं है जो हम लड़कों को लड़कियों से, मर्दों को औरतों से, औरतों को मर्दों से होता है. इट्स अ फ्रीक्वेंसी, it's not romance. Love is depicted as emotionality, generally possession, physical attraction, control, addiction, eroticism and novelty. In frustration, it unmasks anger and dependency. तो आम तौर पे लव की ये है, लव में हम possess करना चाहते हैं, ठीक है, हम इमोशनल होते हैं, हमें अट्रैक्शन होती है, हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब हमें वो नहीं मिलती तो उसके नीचे से क्या निकलती है? Anger and frustration. So we are not talking about this love. This love is not frequency of love. What is frequency? Hate stems from pride, not love. Another thing, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अब मुझे नफरत हो गई है. That's also not frequency of love. Pride की उन्होंने कहा कि opposite, जो लोग pride में होते हैं और जब मोहब्बत में धोखा खाते हैं तो नफरत कर सकते हैं. Love की frequency वाले लोग नफरत नहीं करते क्योंकि वो acceptance, neutrality, willingness से गुजरे हुए होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं.
So at this level, it is all inclusive, forgiving, unconditional, unchanging, and permanent. Love is a state of being. People are in this state living. ये कोई इश्क और आशिकी की वो वाली कहानी नहीं है जो हम रोज़ पढ़ते हैं या नॉवेल्स में होती है. ये वो है जिसको रूमी ने अटेन किया, जिसको शम्स ने अटेन किया, जिसको आइंस्टाइन ने अटेन किया, जिसको डेविड हॉकिंस ने किया होगा अटेन. इस तरह की फ्रीक्वेंसी जिसमें सब को आप एज इट इज़ देख सकते हैं और उनसे मोहब्बत कर सकते हैं. उनको आप मोहब्बत कैसे करते हैं? जब हम अनकंडीशनल होते हैं, हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, हम इम्परमानेंस को जानते हैं, हम फॉरगिविंग होते हैं, तब हमें सब सही लग रहा होता है कि जो है वो ठीक है, बेचारा प्यार हो सकता है उससे. क्योंकि हर इंसान से प्यार हो सकता है, हर जानवर से प्यार हो सकता है, हर पौधे से हो सकता है, हर इंसेक्ट से हो सकता है, हर चीज़ से हम मोहब्बत कर सकते हैं. लेट्स गो. It does not fluctuate, that it flows from within, has no external source. आपने मुझे मोहब्बत नहीं की तो मैं अब आपसे मोहब्बत नहीं करूँगी, ऐसा कोई इसमें सिचुएशन नहीं होती. Love emanates from the heart and it isn't intellectual. Love focuses on goodness of life, it dissolves negativity, reasons deals with facts, and love deals with whole. This is the level of true happiness. Only 4% of the total population reach here, and 0.4 to 540, which is the unconditional love. So it's not that easy. It's not simple. Lot of hard work and lot of awareness and lot of consciousness is required. Joy is 540. Unconditional love starts to experience inner joy. मतलब अंदर से खुशी फूटती है. आपको कोई चीज़ आप नहीं है आपके पास. कोई इंसान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, वो तो होता नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताऊंगी. आप मटीरियली सोचें कि कुछ भी नहीं है लेकिन आप खुश हैं. जैसे हम ये बुल्ले शाह, ये वारिस शाह, हम जो सेंट्स एंड की बातें सुनते हैं, हम जो प्रॉफिट्स हैं, जो ये वाले लोग हैं जो बड़े साइंटिस्ट से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये सेजेस जो होते हैं, ये इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं. कुछ नहीं है मगर वो खुश होते हैं. आप उनको एक रोटी रोज़ खिलाते रहें, वो खुश है. नहीं खिलाएंगे तो भी खुश है. देयर इज़ नथिंग दे नीड. वो कहते हैं, अगर आपने किसी ने मन चले का सौदा देखा है, मन चले के सौदे में वो कहता है आखिरी की किस्तों में कि वो चलते हैं लेकिन उनका वज़न नहीं होता ज़मीन पर, उनका साया नहीं होता. Because they're so light. This is a very light frequency. So they do not cause any harm to anybody or even to themselves. Let's go forward. Yes, it is. The hallmark is compassion and they have impact on others. World appears as the expression of exquisite beauty and divine perfection. The sense of responsibility is very different. One uses their sense for the benefit of the others and had the capacity to love many people at the same time. मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और बाकियों से नहीं कर सकती, ये इमोशन है. लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ प्यार कर सकती हूँ और हर किसी को लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा. एंड दैट्स व्हाट दीज पीपल आर. दे आर वेरी फ्यू. हमने कहा 0.4 तक तो 500 में पहुँचते हैं, यू नो. आई डोंट थिंक सो. No. It's a very individual thing. Love to everyone, it means humanity. हाँ. The near-death experiences are transformative in their effect, have given the experience of levels between. बहुत से लोगों को near-death experience में बहुत spiritual experiences होते हैं और वो experiences जब उन्हें हो रहे होते हैं वो उस वक्त इस frequency में आ जाते हैं. And that's only the possibility. That's why few people have near-death experiences and the many other people have near-death experiences but not spiritual experiences. Yes, please. Peace is 600. It gives experience of transcendence, self-realization and God consciousness. ये वो लोग हैं जो सोसाइटी से अलग हो जाते हैं. उन्हें कोई चीज़ की फिक्र नहीं होती. वो एक कोने में, अब उन्हें ना मशहूर होना है, ना दिखाई देना है, ना सुनाई देना है. दे आर वेरी हैप्पी ऑन देयर ओन. ये रोज़मर्रा की रिचुअल्स में ही खुदा को ढूंढ लेते हैं, अपने आप को ढूंढ लेते हैं. यस. Now, it is an extremely rare condition. The discernment between subject and object disappears. ना कोई तू है, ना कोई मैं हूँ, सब एक है. People at this level remove themselves from the world as this state precludes ordinary activity. आम चीज़ें कर रहे हैं. आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना, खेती बाड़ी कर रहे होंगे, रोटी पका रहे होंगे, वीड्स निकाल रहे होंगे अपने घर में से, आपले थाप रहे होंगे ना, वो क्या होते हैं, या ओपले थाप रहे होंगे. एंड बट दे जस्ट इन इट. सिंपल नहीं.
ये पहुंचे हुए लोग होते हैं जिनको अब किसी कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं होती, तो हो अब सिंप्लिसिटी हो जाती, सिंप्लिसिटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, द कॉम्प्लिकेशन गोज अवे फॉर देम. People can become spiritual teachers, great genius in their respective fields. Yes, please. ये सेंट्स होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी फ़्लो में है, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, उनको पता होता है कि हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड है, जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, इवेंचुअली अब हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी. All is connected at this stage and divine presence is felt all the time. Great work of art, music and architecture can take us to this level. So you have a chance. Yes. It's the final stage. Final attainment of humankind where all I and you absolves. It is the state of utter transcendence. Great work of art and healing happens at this stage. The level is grace and grit which is unmatchable. हाँ, यस. इसके बाद क्या है, ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है. एक इंसान अगर पूरी दुनिया में हो 700 का फ्रीक्वेंसी का, वो 70 मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स बिलो 200 के बराबर होते हैं. इसलिए दुनिया कहते हैं ना कि चंद लोगों से चलती है. 1% ऑफ 600 balances 10 million individuals below 200. 1% of 500 balance 750,000 individuals below 200. 1% of 400 balance 400,000 individuals. 1% of 300 balance 90,000 individuals below 200, and 12 individuals of 700 equals to one avatar at 1,000. ये कैलकुलेशन उन्होंने लाखों लोगों के टेस्ट एंड रीटेस्ट कर करके उन्होंने की है और स्टैटिस्टिक्स पर इस्तेमाल की है. ये इसलिए कहते हैं ना कि चंद लोगों ने दुनिया का बोझ उठाया हुआ है. बोझ उठाया हुआ नहीं है, वो बोझ से फारिग है, इसलिए दुनिया चलती है. ये बैलेंस बनता है. वरना अच्छे लोअर फ्रीक्वेंसी में अगर 85% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो 15% की हम बात करें 200 एंड अबव, तो 15% जो है वो बैलेंस करते हैं 85% को. इस तरह बैलेंस करते हैं जी. लेट्स गो फॉरवर्ड. हाउ कैन वी नर्चर आवर कॉन्शियसनेस? मैंने पहले भी बताया था, आई एम रिपीटिंग दैट स्लाइड. बायोलॉजिकल रिदम. अपने खाने पे गौर कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसकी एनर्जी लविंग है, हैप्पी है, सैडनेस तो नहीं है उसके अंदर, स्लीप कैसी है, आपकी सेक्सुअल रिचुअल्स कैसे हैं, आपकी अपनी रिलेशनशिप अपनी बॉडी से कैसी है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, आपके थॉट्स क्या हैं, बिलीफ क्या है, आप उन थॉट्स को, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है. स्पिरिचुअल रैल्म, 4 E's. एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करें, उस एंजॉयमेंट से इवॉल्व होंगे. और उसके बाद और सबसे पहले भी है मेडिटेशन. मेडिटेशन एंड सर्विस टू लिविंग एंड नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग is the ultimate, as David Hawkins and many other scientists have been telling us for now. Please go forward. ये एक मैं लास्ट आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ कि जो लोग, इन्होंने कहा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ पॉवर्टी, हैप्पीनेस रेट एंड रेट ऑफ क्रिमिनलिटी. तो जो 600 प्लस पे हैं वहाँ पे सब कुछ 0 है, 100% हैप्पीनेस है. हमें लगता है कि ये बेचारे गरीब हैं, अगर वो गरीब भी हैं तो गरीब हैं नहीं, ठीक है ना. जो 500-600 के दरमियान है 98% हैप्पी हैं, 0.5% उनमें कोई क्रिमिनलिटी निकले. 400 to उसके बाद आप 300 to 400 में आइए तो 70% हैप्पी है, 7% सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, 5% उसमें क्रिमिनलिटी हो सकती है. अगर आप नीचे लेस देन 50 में आ जाएं तो 97% अनएम्प्लॉयमेंट है, 65% रेट ऑफ पॉवर्टी है, 0% हैप्पीनेस है और 98% ऑफ क्रिमिनलिटी है. So when we rise above, it is not, I feel that, you know, it is not that you can't earn money or have physical material attainments, but अगर वो attainments अब आपका purpose नहीं रहती, वो आपका goal नहीं रहती, वो है, वो नहीं है, वो कम है, वो ज़्यादा, doesn't even matter. And when material starts to become impractical or matterless, and I think it is a very good sign. बट आपको कंप्लेसेंसी और इसमें आपकी बाकी जो बिहेवियर्स हैं वो उसके साथ मैच करने चाहिए. शेम और एपैथी के लोग भी कहेंगे कि मटेरियल क्या करना है कुछ, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में क्या देखेंगे, क्या फ़र्क होगा,
वो ब्लेम कर रहे हैं, वो विक्टिम मोड में हैं, वो बुरा फील कर रहे हैं, वो सैड हैं, वो आपकी एनर्जी खा जाते हैं, आप उनके करीब नहीं रहना चाहते, दिस मीन्स दे आर ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी. लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी के लोग भी आएंगे तो वो एक सूखी रोटी खा रहे हो शायद, या शायद बहुत अमीर हो तब भी सिंपल रहते हो, लेकिन आप उनसे बार बार मिलना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं. वो बात ना भी करें तो उनकी प्रेजेंस में एक अजीब किस्म का जॉय होता है, एक लाफ्टर होता है, एक कांस्टेंट डांस ऑफ लाइफ होता है. एंड दैट्स where the discernment is, and we all have come across people like this in our life, and we'll keep coming across. Now the question is, are we willing to be one? Are you willing to be one? What you want to aspire for yourself? Which frequency you would like to go? Where you are, first you need to recognize in which frequency you would like to go. The higher the jump, the higher the test. Difficulty होगी, तेज तेज टेस्ट आएंगे आपके ऊपर, और आपको गिरेंगे, आप फिर उठेंगे और गिरेंगे और फिर उठेंगे. जी, लीप ऑफ फेथ तो होता है, लेकिन गिरने का खतरा होता है. गिरते हैं लीप ऑफ फेथ के अंदर, लेकिन फिर से उठना होता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. थैंक यू वेरी मच. वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस, मे बी फॉर 5 minutes or something like that. Okay, the last thing is, I had run this course, अभी एक कोहोर्ट मैंने किया है लव एंड पीस का, एंड आई एम स्टार्टिंग इट अगेन. इट वेंट रियली वेल. And if anybody is interested, that's why I just put it out. And it's a course in which we are going to understand love from all the perspectives of psychology, philosophy, quantum physics, spiritual sciences. We are going to use dance. We are going to use wild therapy, which is like nature, work with nature, all of that, to understand ourselves and how we can enhance the capacity of love and beingness. And we use music and art and all of it in it to understand. It is purely to understand yourself, not anyone else. Is it online? It is online, yes. It is it is experiential course. You can find yourself and can feel pain about it, and eventually when you accept the pain, then it can be euphoric. Okay? Okay ji. Thank you ji. Thank you. Thank you. Anybody wants to ask? Yes. Hi. I have asked you earlier, but how can we change our frequency? As I told you, nurturing yourself. Like you are 11 years old, if you do meditation for 11 minutes every day, you will see, first you need to, पहले तो you understand करो where you are. ठीक है? अच्छा, स्पिरिचुअली आप ये फ्रीक्वेंसी का गेम बॉडी की एज से नहीं होता, स्पिरिचुअल एज से होता है. सो मे बी यू आर बॉर्न स्पिरिचुअली एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मे बी 200 से तो अबव ही हो तुम, ये तो मैं जानती हूँ. सो अब तुम सोचो कि तुम 200 से अबव हो, बिकॉज यू आर सिटिंग हियर 11 year old, ऑन हिज ओन. एंड सो नाउ यू थिंक अबाउट कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में जाना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी तुम्हें अट्रैक्ट करी, अंदर से अट्रैक्ट करी है. एंड देन यू मेडिटेट ऑन इट, देन स्टार्ट टू चेंज योर फूड हैबिट्स. Okay. And your check on your belief system. But if you keep meditating on a daily basis, the rule of the thumb for meditation, आपकी जितनी एज है कम से कम उतने मिनट आपको रोज मेडिटेट करना है. Only meditation is At the this way. point in time for you it is very workable. जब मेडिटेशन करते रहोगे तुम्हारी अंदर बहुत सी चीज़ें वैसे ही चेंज होती रहेंगी. ठीक है? सो आपकी, अगर आप 80 साल के हैं तो 80 मिनट्स, अगर आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 10 साल के हैं तो 10 मिनट, 5 साल के हैं तो 5 मिनट, ये मिनिमम है. Is it you know? only the way? It is one of the biggest way. Okay. So can we say above 200 are successful and below 200 are unsuccessful? Successful in which ways? Materially? Yes. No. मैंने कहा था कि below 85% of the population is below 200. तो उसमें कितने successful लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं? A beggar can be 1000 frequency. Well, not really. No. A beggar won't, because beggar क्या कर रहा है, victim mode की frequency में, lower frequency में. वो अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहता. ठीक है, वो मांगता है, वो ब्लेम करता है, वो अपनी पोटेंशियल्स यूज़ नहीं कर रहा, तो इसलिए वो नहीं है 1000 की फ्रीक्वेंसी में. लेकिन एक सेंट जो एक कोने में बैठा है कहीं, और आप वो एक झोपड़ में है, आप कहीं गए, वो एक झोपड़पट्टी में अकेले रहता है, जो भी उसने करना है, जौन से भी तरीके से वो अटैच होता है डिवाइन से, वो अटैच्ड है, और आप उसके पास जा रहे हैं, वो ब्लेम नहीं कर रहा, आपसे मांग नहीं रही, आपको कुछ दे ही रहा है, बर्डनिंग नहीं है. ठीक है, दैट डिसर्नमेंट वी नीड टू डू. Okay. Last question. दो स्टेट न्यूट्रलिटी की हैं, तो उनको उसका क्या मतलब है? दो स्टेट न्यूट्रलिटी की हैं. दो स्टेट ना मतलब वो अपर में है ना वो नीचे है. दो Neutrality- फ्रीक्वेंसी, सॉरी.
neutrality is a frequency above 200. Now, neutrality means people start to see people as equal. They do not, polarization खत्म हो जाती है कि आप अच्छे हैं और ये बुरे हैं, आप ज़्यादा हैं और ये कम है. सो 200 में भी कुछ पोलराइजेशन है ना, लेकिन अबव 200 में पोलराइजेशन नहीं होना बंद हो जाती है कि मुसलमान अच्छे हैं और बाकी सारे बुरे हैं, या हिंदू कहें, या लेट्स से क्रिश्चियंस कहें कि क्रिश्चियनिटी सच्चा मज़हब है, बाकी सब झूठे हैं. ये ख़त्म हो जाता है. पीपल आर नॉट पोलराइज्ड. हाँ, तो हमारी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड करती है. नहीं लो, हाँ वो ठीक है लोअर फ्रिक्वेंसी में, लेकिन उसी फ्रिक्वेंसी में एक जो है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं, उसमें भी तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लोग होंगे ना. हाँ, मोस्टली बिलो होंगे 200. फिर हमने बात की वाइट टाइगर की, उसमें से कोई एक वाइट टाइगर निकलेगा. सो अंडरस्टैंड कि इफ़ वी आर बीइंग क्या कहते हैं ब्रॉट अप इन अ प्लेस वेयर हम सही हैं दूसरे गलत हैं, और ये करो और ये ना करो, और इसको ये करने का हक है और वो करने का हक है. अब वो ऑर्थोडॉक्स हैं, रिलीजियस हैं, नॉन रिलीजियस हैं, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी बिलो 200. इट्स अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. Yes, please. When you talk about meditation, what do you mean? And can you Okay. give us an Meditation example? meditation is sitting with yourself, closing your eyes, and connect with your breath. So it is not about stopping your thoughts. It's about you connect with your breath, and your attention will keep going into your thoughts, and you will keep bringing back your attention to the breath, because breath is the only medium which keeps human beings alive. Like soul world में जो medium है वो love है, और बॉडी में जो मीडियम है वो ब्रेथ है. सांस गई, हम गए. तो अपनी सांस के साथ वापस आना है. एंड द मोर वी कनेक्ट टू आवर ब्रेथ, द मोर वी बिकम रियलिस्टिक एंड प्रेजेंट and mindful. So the idea is not to stop the thoughts, not to recite any mantra, or because the more we do it, the more we are engaged in activity. It is about having no activity. So maybe at some point in time I can, if they allow me, run a meditation class for 20 minutes or something for all of us. Yes. I have a question. Yes, please. So there are different categories, right? But for example, there's desire, and then there's courage, and then there is, Whatever, yes. quite a few Huh. things. But, and by the way, I'm asking this question from the perspective that, all right, if you're long term in a state, for example, you can consider yourself to be, if you've let go for prejudice, for example, perhaps that's a state of courage. Would you agree? Can you which you Say said? if you've let go of prejudice. Huh. Say. Well, not necessarily that letting go of the prejudice will only take us into the courage. All right. It's a host of different elements. Host of different elements. So So just yes. like there is like Myers-Briggs personality scale, right, which has spectrum of bits. Could there be like No. So spectrum as of I say, the frequencies? frequency keep moving up and down. Yeah. इसलिए क्योंकि हमें वो होपफुल सिचुएशंस में कभी कभी फील करना होता है अपने आप को, ताकि हमें हो कि ये भी एग्जिस्ट करती है ना. यानी कि हम जब तक कोई चीज़ अच्छी चीज़ फील नहीं करेंगे तो उस तक जाएंगे कैसे. सो हम एक फ्रीक्वेंसी हमारी होम ग्राउंड होता है, और फिर हम उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं. बुरा फील हुआ, कुछ चला गया हमारे से, तो हम नीचे फ्रीक्वेंसी में चले गए थोड़ी देर के लिए, फिर हम वापस अपने होम ग्राउंड में आ गए. फिर हम कभी कुछ अरसे के लिए किसी से मिले, नेचर में गए, सम अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुए, तो हम ऊपर की फ्रीक्वेंसी में चले गए. बट आपको अपना होम ग्राउंड तलाश करना है विद द होस्ट ऑफ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, emotional reactions, actions, thoughts and beliefs hai. And is that only done through self-analysis, or is there a quote-unquote prescription of some Well, kind? obviously what they did is they did with a test with people and then told them their frequencies. However, obviously that's not possible all the time. Yes, if suppose I really want to know myself, the one of the best thing to do is get into some kind of self discovery journey. सो ऑब्वियसली माई फील्ड है, थेरेपी इज़ वन ऑफ देम. मैंने जैसे कहा कोई आप स्पिरिचुअल मेंटोर ले लें. सो द 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर हेल्दी फूड विच इज़ नॉट अ सैड फूड, कंपनी ऑफ द पीपल who are aspirer of the higher frequency. Number 3 is meditation. ठीक है ना. And number 4 is service to humanity. If we become mindful of all of that, then eventually we will find out a frequency through our own experiences,
and will expire for ourselves as well. हाँ Yes, yes, please. जी जी हाँ मैं तो फिज़िक्स के तालिब इल्म हूँ, साइकोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं है, जी जी. लेकिन फिज़िक्स भी एनर्जी और मैटर के साथ जो है डील करती है। तो जहाँ तक मुझे समझ आई है, यहाँ से वो लेवल 50 से लेकर और 700 तक गई हैं। तो ये दरअसल जो है ना मटेरियल चीज़ है, हम वो एनर्जी की तरफ जा रहे जी, हैं, जी. स्पिरिचुअल की तरफ आगे जा रहे हैं यहाँ पे। हम्म. तो एक चीज़ तो ये समझ आई है। दूसरी ये है कि मतलब ये आपने कहा है कि हॉकिन ने कहा है कि 3 स्टेप में होता है यहाँ पे। तो उसने कहा कि एक लाइफ टाइम में 3 दफ़ा फ्रीक्वेंसी चेंज हो तीन सकती है. दफ़ा होती है। ना 3 दफ़ा का मतलब ये नहीं कि जो 20 में है वो 30 और फिर 50 और फिर 60 पे जाता है. अच्छा। 20 से आप 200 पे भी एक्सपायर कर सकते हैं, 200 से आप 500 पे भी एक्सपायर कर सकते हैं, क्योंकि कर्विलीनियर आप जंप लेते हैं तो जितनी ज़्यादा एस्पिरेशन होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी में आप चले जाएंगे, जा सकते हैं. लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी मैंने अटेंड की है ना, तो मतलब है मैंने लीनियर अटेंड की, कर्व नहीं की यहाँ पे। हम्म. मैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन जो की है यहाँ पे। और दूसरी है, चलो ये तो बात की डिस्कशन है यहाँ पे। दूसरी है क्या, एक जो है ना 700 से बिलो जो है ना वो शेम फ्रिक्वेंसी पे आ जाए, आ सकता है, आ सकता है इस आ तरह। सकता है. तो फिर 700 से शेम में आना निस्बतन मुश्किल है, लेकिन 400 500 से 400 समझें, 450 से नीचे आना बहुत आसान है. वंस यू सो चलें, कभी कभी 500 से भी आप नीचे आ जाते हैं. 500 से अब पे ज़रा मुश्किल है नीचे आना, बिकॉज बहुत सॉलिड ग्राउंड होता चला जाता है. लेकिन 400 या 500 तक से नीचे शेम में आना, हिटलर की फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बताया था कि 450 समथिंग थी, वो नीचे आ गया ना शेम में आ गया, उसने तबाह कर दिया. ठीक है. No, he was a genius. He was very, accomplished, intelligent person, in so many ways. But it just, he got triggered. Yes, please. You talk about peace कि it's the highest level ना, but आपने जैसे कहा कि गांव में एक बंदा रहता है, वो अपने सारे काम कर रहा है और वो पीस में है, बट isn't it lack of stimulus and lack of awareness? Okay. तो उसको So, पता ही नहीं मैंने बाहर ये इतनी नहीं कहा कि exist करती गांव हैं. का बंदा जो है, मैं एक एग्जांपल दे रही थी, जो आप एक यूजुअली हम ये कहते हैं ना कि बुजुर्ग किसी झुग्गी में रह रहे होते हैं, एक हम फिल्मों में और हमारे लिटरेचर में ऐसा होता है. तो गांव में एक इंसान रह रहा है और बिल्कुल लैक ऑफ स्टिमुलेशन से रह रहा है, तो वो सेंट नहीं है. If their belief system, their behaviors, their thoughts and their emotions are governed by the lower frequencies, then they are not saints. They're just living in the gaon. Doesn't mean that they are, or living a secluded life doesn't mean they are saints. It means they're also from the lower frequency. Now, this is another ball game again, that when the transformations happen, what happens? People start to live first in the edges of the world and then slowly and gradually come back and intermingle with human beings more. तो नहीं, आपको ये देखना है कि उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनके बिलीफ सिस्टम जो हैं वो किस तरह चल रहे हैं. तो गांव वाले लोग भी उतने ही क्रूअल हो सकते हैं जितने शहर के लोग हैं. But if they are at peace with their life, तो What do फिर you उस mean case by में है. peace? अगर वो ये कहते हैं कि बस रोटी खा लो सुबह में, रात को सो जाओ और खेत पे चले जाओ, और उसके बाद अगर खेत जल गया तो रोना शुरू कर दो और गवर्नमेंट को कह दो या जागीरदार के पास जाके गुलामी शुरू कर दो, तो ये तो पीस नहीं है. ठीक है ना. हैप्पी सेल्फ सफिशिएंट कि अपना उगाना है, अपना पकाना है, अपना खाने दे. हाँ, लेकिन उनको कोई एस्पिरेशन नहीं है, उनको अपनी कॉन्शियसनेस नहीं पता. उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या तो गिल्ट है या शेम है या फियर है कि फ़लाने को कुछ ना कहो क्योंकि वो बड़ा है, वो छोटा है. अगर आपको बहुत गौर से देखना होगा, बहुत सारे लोग पीस में फियर की वजह से रहते हैं. ठीक है ना, गुलामी करते हैं वो. तो पीस जो है वो बहुत दफ़ा पेरेंटली, पीस पर से इज़ fueled by fear. मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी जी, I was born in the frequency of 200, 1000. Yes, please. Hello, ma'am. Idhar. जी. How consciousness feel or play the gap between certainty and uncertainty? So the more higher frequency goes higher, the more life becomes certain. Why it becomes certain? Because uncertainty is nothing for them. When I and you and divine and me and the nature and me becomes one, there is no uncertainty. If I lose everything, doesn't matter. If I gain everything, doesn't matter. There is no uncertainty. Life becomes certain and certain because our aspirations becomes very effervescent, and and material doesn't matter to us. No, ma'am, it's not about material, it's about certainty, because certainty exists.
So that's what I'm saying ना. और अनसर्टनिटी का जो ताल्लुक है ना वो लोअर फ्रीक्वेंसी में ठोस चीज़ों से है. तो जब हम हायर फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं तो चीज़ें इममटीरियल होती हैं. द मोर इममटीरियल कनेक्शंस वी हैव द मोर सर्टन द लाइफ इज. गॉट इट? if I die, it's fine. If I live, it's fine. If I get anything, fine. If I don't get, I'm fine. तो certainty कोई चीज़ आपको ट्रिगर ही नहीं कर रही. And then it becomes certain. नमनेस नहीं है. नमनेस लोअर लेवल पे होती है. नम में आप पीस में नहीं होते, आप परेशान हाल होते हैं और आपकी इमोशंस एंड थॉट्स आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं. यस. Thank you very much, Dr. Shaila, for a wonderful talk first. Thank you. My question is, like, it is often seen or said that people, like many great researchers or scientists or great statesmen, they often have very disturbed, like, marital or family lives. Like, is it that they are not, like, people are not able to understand them, or See, they don't हाँ, really bother अब about these things? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है क्यों लोगों को लगता है कि जो अटेन्ड पीपल हैं उनके ह्यूमन कनेक्शंस या ये वाले रिलेशनशिप बड़े पहुँचे हुए होते हैं. नॉट नेसेसरीली. अगर आपने सेजेस सेंस देखे हों तो वो अकेले होते हैं. वो ना कभी शादियाँ करते हैं या उनकी कोई बल्कि आप अब्दुल्ला भट्टाई बुल्ले जिनकी ज़िंदगियाँ देखें तो कहते हैं कि एक बिलावड आता है और फिर बिलावड चले जाता है और वो धोखा फील करते हैं और धोखे से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं. सो ये जो शादियाँ हैं, सक्सेसफुल मैरिजेस हैं या एम्प्लॉयमेंट है, इट डज नॉट इक्वेट their higher frequency. It can be one of the incidences in their life fueling the fuel for them go to the higher level. देखो पेन जो है वो inevitable है. पेन बहुत important है to aspire to the higher frequency. I can't be totally happy and just aspiring. I aspire from the lower frequency to higher through pain, and then the pain becomes useless for us. Yes, maybe we'll take up the last question now. एक तो ये क्या पीछे आपके पीछे वाली पहले खातून ने हाथ उठाया. Yes. You have just mentioned purely that frequencies is just attainable thrice in a life, right? No. आप 3 jump ले सकते हैं. Okay, we can just take 3 jumps. But don't you That's think... what David Hawkins said. Don't you think it's just a gradual attainment? No. Fear has no age. Like No. minimized age. देखो, again समझो, A is to B is to C नहीं है. It is A into B into C है. लीनियर प्रोग्रेशन क्या होती है? A follows to goes to B and B goes to C. But what they're saying, it is A into B into C, which means A multiplied by B multiplied by C. That is why we can take a jump, only we need to set up an intention. No, but it's just like we have read somewhere or heard from many that fear have minimized age. When fear ends, their desire starts. जब हमारा फेयर ख़त्म हो जाता है तब हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए एंड वी जस्ट गो टूवर्ड्स मोर एंड मोर. और फिर जाके डिज़ायर हमारा ख़त्म होता है तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है. ओके, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इमोशनल एलिमेंट्स हैं. सो डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रीक्वेंसी एंड इमोशनल एलिमेंट. एक हायर फ्रीक्वेंसी के लोगों में भी डिज़ायर भी होती है, फियर भी होता है, सैडनेस भी होती है, ग्रीफ भी होता है, ठीक है, शेम भी आ सकता है कभी कभी ट्रांजिएंटली. हम इमोशन की बात नहीं करें, हम एक फ्रीक्वेंसी, हम होस्ट ऑफ इमोशंस, होस्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम एंड थॉट प्रोसेस एंड एक्शंस की बात कर रहे हैं जो मिल के, जैसे मैं आपको पिछली दफ़ा बताया कि आप ये कहें, हम ये बहुत कॉमनली, आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आज मुझे एंग्जाइटी हो रही है, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इससे हमें कोई बीमारी नहीं है ये. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ओ आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी नाउ दिस इज़ एन इलनेस, बिकॉज देयर आर होस्ट ऑफ behaviors, emotions and thought processes which are uncontrollable to them. They cannot take it off. इसी तरह फ्रीक्वेंसी में जब हम रहते हैं तो हमारे वो जो होस्ट ऑफ इमोशन, थॉट्स एंड स्पीच है वो उसके अंदर मूव करती है, उसके अंदर इमोशन चेंज होते रहते हैं. फियर में भी बहुत ज़्यादा करेज कभी कभी हम फील करते हैं, फियर में भी लव होता है. हम लव एक इमोशन हो सकता है और कभी कभी फियर से निकल के लव की फ्रीक्वेंसी में छलांग लगाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं. ये छलांगें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज यही हमें बताती हैं कि कुछ एग्जिस्ट करता है जिसको हम फॉलो करेंगे. One more thing. Yes. How can we just get to know where we exist? So ये मैंने आपको ये क्लास ली ही, या क्लास लेक्चर व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, ये ली ही इसलिए कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूँ. अब डेविड हॉकिंसन की एक किताब जो है ये ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं. पाकिस्तान में मिलती नहीं है लेकिन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करें, पढ़ें. और जैसे इस बच्चे ने पूछा मेडिटेट
कीजिए, जितना आप मेडिटेट करेंगे और इंटेंशन पुट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने बिहेवियर्स की, इमोशनल लेवल्स की एंड सो फोर्थ का पता चल जाएगा. मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी एक्सेप्ट करने में कि मेरी ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम सबको लगता है हमारी फ्रीक्वेंसी 700 ही है, ठीक है ना. लेकिन ये पता करना है कि यार 70 एक्चुअली में इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. वन हैज़ टू बी रियली रियली रेडी टू नो इट एंड इट इज़ डिफिकल्ट. Name of the book. David Hawkins, Map of Consciousness. Thank you very, very much. Thank you.